us also that how they could develop such a great hypothesis, maybe by collecting samples of in that way Punjab University, Dr. Asu Khosla and his research group was very fortunate. Of course, hard work was there. That is why they could collect such a rare sample. So, being person of chemistry, I know what kind of excellent research has been done in this department. So, this is one of the proud departments of Punjab University. This department was is a center of advanced studies for many years, and I think fifth grant भी since 1958. हमारे पास fifth grant भी थी. So we already had fifth grant, and maybe in future under the dynamic leadership of Dr. Asu Khosla, they will certainly apply for another fifth DST fifth grant, and believe me, this department will get depending upon credentials of the department is certainly going to again get DST fist. So I encourage even young teacher like Mahesh should work more for making such proposals so that we can get many bigger grants in our university. So I hope that this session will really be very beneficial for all the students, because you are going to interact with your own family member who is a distinguished alumnus. So, sir, on behalf of Central Placement Cell, I once again welcome you in this interaction session. Thank you so much, sir. So our worthy speaker for today is Dr. Ritesh Arya. Dr. Ritesh Arya is an Indian geologist known for finding water at multiple locations in the high altitude cold and mountainous deserts of Ladakh, including the Siachen Glacier, which has made him a Guinness World Record holder. He did his pre-medical from DAV, Chandigarh, but soon realized that dissections on animals was not his cup of tea. He joined BSc Honours School in the Centre of Advanced Study in Geology, Punjab University, Chandigarh, and later pursued his Masters and PhD from there. He has an interest in climate, fossils, groundwater, tectonics, and geothermal. In 2003, he made his name in the Guinness World Records for exploring and drilling the highest artesian condition borewell in the world for the Indian Army. He presented his findings in World Water Week Stockholm in 2009. Now, I request Dr. Ritesh Arya to come on the stage and grace the audience with his words. आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि मैं उस जगह में पहुंचा हूँ जहाँ से मेरा जियोलॉजी में कैरियर शुरू हुआ। ट्वेल्थ करने के बाद या ट्वेल्थ तक यही लगता था क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं डॉक्टर बनूँ, पर जैसे मैंने पढ़ के बताया कि मैं जब डायसेक्शन करने जाता था तो मैं ऑलमोस्ट लाइक बेहोश हो जाता था, क्योंकि मैं देख ही नहीं सकता था कि डायसेक्शन कैसे हो। और ट्वेल्थ के बाद पता लग गया था कि एग्ज़ाम भी दिए, उसमें सिलेक्ट नहीं हुए। फिर उसके बाद क्या करना था, जियोलॉजी का जी नहीं पता था। तो किसी ने बोला यार तेरे को एडमिशन, क्योंकि वो उसमें था कि अब कुछ नहीं कर सकते, तो बोला तू कहीं और नहीं मिली एडमिशन, तो तू ऐसा कर जियोलॉजी में चला जा, वहाँ भी बड़े मजे आते हैं। मैंने जैसे मुझे कहते बाकी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेगा तो वहाँ पे जब टूर जाता है ना तो वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। वहाँ पे एक महीने का टूर होता है, 5 रुपये रोज मिलते थे हमारे को, और 150 रुपये महीने का मिलेगा, तो हमारा 200 रुपया महीने का खर्चा आता था मेस में। तो ये मैंने कहा पूरे महीने का पिक्चरों का जुगाड़ हो गया। तो इस तरह से जियोलॉजी डिपार्टमेंट में आ गए। कुछ पता नहीं यहाँ पे रैगिंग होती थी, पता नहीं आप लोग की होती नहीं होती, हमारे टाइम में बहुत होती है। क्या करने अभी जियोलॉजी में कुछ पता नहीं। तो जियोलॉजिकल सर्वे करने का नाम सुना था भाई, सारे वो GSI नहीं होता, वो जीप जियोलॉजिकल सर्वे नहीं होता, वो जीप सर्वे करने होता है। घूमने आए यहाँ पे, पर ऐसे ऐसे करके बड़े मजाक ढंग से हमने जियोलॉजी ज्वाइन की। और अभी चलेगा कैसे, तो उसके बाद क्या हुआ कि तो फिर हम यहाँ पे आ गए। तो ये टीचर्स की यूनिट
हिस्ट्री लगाइए क्योंकि इसके साथ हमने 2 फील्ड ट्रिप्स किए थे बड़े इंटरेस्टिंग थे। एक मेरे ख्याल गुजरात में और एक कहीं और है ना, राजस्थान में कहीं पे। नवल किशोर और तुलसी सर के साथ हम मेरे ख्याल के फेवरेट थे, बड़े इंटरेस्टिंग से थे। और अब तो वो नहीं रहे, तो ये लाल सर भी नहीं रहे काफ़ी, तो उनके लिए मतलब एक ये हमारी क्लास है। मेरे पास अपनी क्लास की फोटोग्राफ तो नहीं मिली, पर ये हमारा मेरे ख्याल देहरादून वाला ट्रिप था। तो आप ये देख सकते हो, ये मैं हूँ और ये आशु। और ये बाकी हमारी क्लास में फिर 2 ही लड़कियाँ थी, 18 लड़के थे स्टार्टिंग में। करते 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 हम मेरे ख्याल एमएससी में मेरे ख्याल 5-6 रह गए। और वो 2 लड़कियाँ थी, वो टॉपर होती थी, हम नीचे से टॉपर होते थे। तो और फिर हम मस्ती करते थे कि हम पढ़ाई वढ़ाई तो मेरे ख्याल से जियोलॉजी का जब पता ही नहीं था कुछ भी, तो कर रहे थे, हो रही थी। अब ये प्ले कर रहे थे। तो ये मैं ये आज ये जज बना हुआ है, ये गोपाल है हमारा दोस्त, और भी इसमें। और ये पटनायक से हम हॉस्टल मेट हैं, एक ही फ्लोर में। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम ये चेयरमैन बन गए हैं डिपार्टमेंट के, और दे आर एक्चुअली कंट्रोलिंग दिस and moving this in the very right direction. और ये कुछ चुनीलाल, पर हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था चुनीलाल वाला, सिर्फ एक ये पेड़ होता था, और यहाँ पे वो जो यहाँ पे कैंटीन था उसका नाम था चुनीलाल। और यहाँ पे हम सब यहाँ पे चाय भी पीते थे, समोसे खाते थे, कविताएं जो भी गपशप होनी सब यहीं पे होनी सब। आज बाजू और ये जसवंत जी, ज्ञान जी, ये सब बड़े अच्छे, अभी तक हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हैं इनके साथ। और फिर कॉफी हाउस में जाते थे आता टाइम, तो हम वो चेस खेलने में स्टूडेंट सेंटर में वही बस फेवरेट हॉबी होती थी। वो कोई इंग्लिश डिपार्टमेंट वाला था, कोई हिस्ट्री वाला, सभी बड़े अच्छे दोस्त हैं, सारे वही खेलते रहते थे। तो इस तरह से ये चल रहा था। तो जब मैंने क्लास लेनी शुरू की मेरे ख्याल, तो एक वाक्य से आश्वासन होती है, तो वैसे हुआ कि मेरे ख्याल प्रोफेसर का नाम तो मेरे को याद नहीं, मेरे ख्याल सानी सर या लेक्चर दे रहे थे। तो ये वो बोलते हैं मेडलीकॉट 1864 में आए थे कसौली में, और उन्होंने कुछ इल प्रिजर्व्ड इंस्टीट्यूट लीव्स नहीं थे, वो कुछ ढूंढे उन्होंने वहाँ से, ये फर्स्ट ईयर की बात है। तो मैंने कहा यार कसौली में, तो मैं आई बिलोंग टू कसौली, तो मैंने कहा यार ये कसौली में 1864 में बंदे ने फॉसिल ढूंढे, उसकी बात कुछ नहीं है। और हम किताबों में पढ़ते थे, अदरवाइज कसौली एंड अच्छा फॉर्मेशन, तुमने भी यही पढ़ा होगा, अनफॉसिलिफरस। यस, मेरा ख्याल रविंदर कुमार सर की वो नई किताब आ रही है, उसमें उन्होंने मेरे से दिए थे। तो हमने कसौली फॉर्मेशन इज फॉसिलिफरस, और उसमें जितनी डाइवर्स फॉसिल्स मिले हैं वो एंजियोस्पर्म्स की एवोल्यूशन के ऊपर बहुत, मैमल्स के एवोल्यूशन के ऊपर बहुत, ओल्डेस्ट राइनोसेरस हमारे को मिला एंजियोस्पर्म्स में, फ्लावर्स, तो काफ़ी फिर डाइवर्स। और मैं ये मेरा इतना इंटरेस्ट जागा कि ये पढ़ते रहते थे, फिर मैं फॉसिल ढूंढता रहता था। और बाय द टाइम आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, आई हैड द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ फॉसिल्स फ्रॉम कसौली। वहाँ एग्जाम में लिखते थे कसौली से अनफॉसिलिफरस क्योंकि पास होना है, लेकिन वी हैड द लार्जेस्ट कलेक्शन। तो ये एक इंस्पिरेशन रही। तो ये पाम के फॉसिल्स जहाँ से मेडलीकॉट ने ढूंढे थे, वो हमने फिर उस टाइम तो नहीं, पर मिले गौरा से, तो जहाँ से उस लोकेलिटी से उसको इंस्टीट्यूट नहीं मिले थे, हमने इंस्टीट्यूट फॉसिल्स ये पाम के ढूंढ लिए। अब पाम का कसौली में मिलना बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस टाइम उसने ढूंढ लिया, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर उसकी पेलियोटेक्टोनिक इम्प्लीकेशंस देखो और पेलियोजियोग्राफिक इम्प्लीकेशंस देखो, तो अब ये कसौली अनफॉसिलिफरस है। और हमने एक मेरा ये लैब्राडोर डॉग होता था, जब भी मैं जाता था तो ये हथौड़ी पकड़ लेता था मुंह में। तो दिस इज हाउ वी डिड अ जर्नी। फिर ये कसौली की जो सड़कें थी, आप लोग भी कभी गए होंगे कसौली, सारे गए होते हैं यहाँ से, तो जो भी हम भी ट्रैकिंग करके, मैं कई लोगों को अपने दोस्तों को लेके जाता था। और अभी तक जो मेरे साथ गया है वो ट्रैक, वो जोलॉजी की लड़कियाँ ज़्यादा होती थी, क्योंकि हमारे पास 2 ही लड़कियाँ होती थी, वो जाती नहीं थी। तो वहाँ से हम बड़े मजे किए, आज भी वो ग्रुप हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो कसौली के सैंडस्टोन्स थे, हम इसे बचपन में चला करते थे। तो एक पत्थर की सड़कें थी, अंग्रेजों ने बनाई हुई थी, लेकिन जब इसके बारे में इम्प्लीकेशंस देखी तो यू आर वॉकिंग ऑन 20 मिलियन ओल्ड रॉक्स। ये जो सड़कें आपके पास 20 मिलियन साल पुरानी। तो ये ऐसे जियोलॉजी में इतना इंटरेस्ट आने लगा कि धीरे धीरे
अब ये जो प्रिजर्वेशन है फॉसिल्स की, इसमें सेकेंडरी और टर्शियरी वेनेशंस तक प्रिजर्व हमारे को मिल गई है, अभी बेहतरीन प्रिजर्वेशन इसकी मिली है कि इसकी हम पहले वो सोच रहे थे इसका डीएनए वगैरह भी निकाल लेंगे इसके साथ वो ऐसे करके, और ये गैस्ट्रोपोड्स, इंसेक्ट विंग्स, तो ये पेड़ के फॉसिल्स फिर ऐसे कारों में भर के, ये फूल फ्लावर का फॉसिल्स, तो आपको सीजनल वेरिएशन जिससे पता लगती हैं। तो ये सारा ये 1992 की खबर है, ये मतलब 89 में हमारे को मिल गया था कि कैरोफाइट्स, जिससे हमने एज बताई किस वाली की पहली बार की 20 मिलियन साल है पहले, इसको ऑलिगोमायोसिन करके क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देते थे। ट्रैक्स और ट्रेल्स, तो ये मेरी बेटी है और इनको भी ये पूरे का पूरा फॉसिलाइज्ड ट्री ट्रंक हमारे को अभी ये जो नेशनल हाईवे बन रहा था तो उसमें हमने बोला तो उन्होंने थोड़ा सा अलाइनमेंट उसकी बदल दी और उसको प्रिजर्व किया वहाँ पे। तो ये राइनोसेरस का है। तो इस तरह से ये सारी कहानी चलती रही और ये इंटरेस्ट बनता रहा, और जब ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अब जो स्कॉलरशिप मिल सकती थी कि नहीं मिल सकती थी, तो हम इतने एवरेज फैमिली है हमारी भी, मिडिल जैसे होता है, 3 बच्चे हैं और माँ बाप हैं, तो पैसे पढ़ाई पीएचडी के लिए तो आपको पैसे चाहिए ना, फिर माँ बाप तब तक सपोर्ट करते हैं आपको जब आप भी जैसे क्रूशल जंक्शन में हो कि एमएससी कर रहा है मेरा बच्चा। अब उसके बाद क्या होता है, दे एक्सपेक्ट कि जैसे और है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में गया बच्चा तो या एमबीबीएस में गया है या किसी और प्रोफेशनल कॉलेज में गया तो आपको नौकरी मिलेगी और आप पैसा कमाना शुरू कर दो। ये बड़ा टफ टाइम होता है आप लोगों के, हमारे लिए भी था, पर उस टाइम ऐसा जोश होता है, इस टाइम पता ही नहीं होता कुछ, कहीं पे कुछ चल रहा होता है, कहीं पे कुछ चल रहा होता है। पढ़ाई लास्ट प्रायोरिटी होती है, कैरियर लास्ट प्रायोरिटी होती है कि हमने कुछ करना है कि नहीं करना। तो हमने क्या किया, फिर ये सारा का सारा ये चल रहा है। जब तक फॉसिल ढूंढते थे तो बड़ा अच्छा होता था, तो कोई ढूंढ लिया गया उसमें ये अब क्या था कि ये जो एमएससी खत्म करने के बाद आपकी कश्मकश शुरू होती है जिंदगी कि अब पैसे कौन देगा। पेरेंट्स भी थोड़े रिलक्टेंट हो, कर क्या रहा है भाई, पूछने लग पड़ते हैं, जब तक नहीं पूछते जब तक आप एमएससी कर रहे हो। उसके बाद क्वेश्चंस आपको बहुत आने शुरू हो जाते हैं, फिर आपका स्कॉलरशिप पीएचडी कर रहे हैं, आपका गेट, हमारे टाइम में तो वो भी नहीं होता था, गेट वेट नहीं होता था, आपने सिर्फ ज्वाइन करना है और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई, उस टाइम स्कॉलरशिप जियोलॉजी में बहुत कम होती थी, नौकरियाँ जेएसआई में नेग्लिजिबल थी, ओएनजीसी ने बैन कर रखा था कई सालों से, तो कहीं भी कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा था, पर फिर भी पीएचडी करनी है। तो मैंने फिर ये कलेक्शन मेरे पास अच्छी थी, ये अच्छा ये बताता हूँ इसके बारे में, ये फॉसिलाइज्ड ट्री था, तो ये काफ़ी बड़ा जो जीतनगर के पास है। तो इसमें जब ढूंढा मैंने, ये मेरा थीसिस में भी था, तो इसके बाद क्या हुआ, इसमें वो रिटेनिंग वॉल बनाने लगा वहाँ पे, शाहरुख खान का दोस्त है वहाँ पे, उसने ये पहाड़ी सारी खरीदी और वो रिटेनिंग वॉल बनाने लगा। तो एक दिन मैं वैसे ही पहुँच गया तो उसको बोला यार ये प्रिजर्व मत, इसको मत तोड़ो कि अगर ये 50 तक, तो उन्होंने फिर मिलके हमने ये सारा एक शोकेस लगा दी, फिर अभी आप जाओगे तो ऐसे आपको नजर आएगा ये। तो अब ये प्रिजर्व है, इसका एक अप्रॉक्सीमेटली लेस देन मीटर, 2-3 फुट के करीब डायमीटर है और ये 14 या 15 फीट लंबा है। तो इतने बड़े बड़े पेड़ का ट्रंक है, और इमेजिन करो जब ये इसकी फुल ग्रोथ हुई होगी तो ये 100 मीटर से भी ज़्यादा इनकी लेंथ होगी। और इसकी प्रिजर्वेशन, फिर इसकी कैसे ये प्रिजर्व हुआ, तो मेरे को ज़्यादातर क्या इंटरेस्ट रहता था, टेक्सोनॉमी में इंटरेस्ट नहीं रहता था, क्योंकि मैं जूलॉजिस्ट नहीं था ना, मैं बॉटनिस्ट बनना चाहता था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती थी। पर टेक्सोनॉमी में बड़ा इंटरेस्ट था कि मतलब ये आया कैसे यहाँ, ये इतनी क्यों प्रिजर्व हुआ, इससे बड़ा क्यों नहीं प्रिजर्व हुआ, इससे छोटा क्यों नहीं प्रिजर्व हुआ, और इसकी प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है, इसमें मतलब ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलेगा आपको, फिर इसमें ऑर्गेनिक मैटर क्यों नहीं मिल रहा है, इनको टैक्सोनॉमी का मतलब जो बताना है, इनको नहीं पता होगा बच्चों को, टेक्नोनॉमी का मतलब नहीं पता। नहीं इनको नहीं पता ना, वो तो साइंटिफिक टेक्नोनॉमी क्या होती है बेसिकली, तुम समझ लो, तुम जियोलॉजिस्ट जो होता है वो एक, अगर तुम कहोगे अर्थ का एक सीबीआई जैसे टीम होती है, इन्वेस्टिगेशन टीम, वो होती है कि आपका क्राइम हो चुका है, अब आपने उसको ये ढूंढना है कि ये क्राइम कैसे हुआ है, तो क्या करेगा, आपको दूसरी तरह के एविडेंसेस ढूंढने हैं, ये ढूंढना है, वो ढूंढना है, आपका दिमाग क्या चलना चाहिए, 24 घंटे हर डायरेक्शन में घूमना है, ये यहाँ पे पहुंचा कैसे। अब ये लैपटॉप आ गया कि मैं छोड़ के गया हूँ, ये छोड़ के गया, ये छोड़ के गया, तो ये इन्वेस्टिगेशन है सारी। तो टेक्सोनॉमी एक ऐसी साइंस है जो जियोलॉजिस्ट के होते हैं ज़्यादातर टेक्सोनॉमिस्ट बन जाते हैं, वो बॉटनी और जूलॉजी के ज़्यादा काम करने लग पड़ते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको ये ढूंढना है, जो एक जियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है कि ये आया कैसे यहाँ पे फॉसिल, या ये रॉक कैसे यहाँ पे है, ये सॉइल यहाँ पे कैसे बनी, ये क्रिस्टल यहाँ पे क्यों बना। जब तक आपके पास इसके आंसर्स नहीं आएंगे
या पानी है यहाँ पे तो पानी है यहाँ पे क्यों आया, ऑयल है यहाँ पे तो ऑयल है यहाँ पे क्यों आया, ये सारी टेक्नोलॉजी में आ जाएगी साइंस। तो ये इतनी वास्ट साइंस है और इतनी प्यारी साइंस है कि आपको ये पत्थरों के साथ जोड़ देती है, कनेक्शन आ जाता है आपका पत्थरों के साथ, और जब पत्थरों से आ जाता है कनेक्शन, आप पत्थरों से प्यार करने लग पड़ते हो तो आप जियोलॉजिस्ट बन जाते हो। उसे पढ़ने से जियोलॉजिस्ट नहीं बनेगा, जियोलॉजिस्ट पढ़ने से बनता तो आज इंडिया सोने की चिड़िया होती। तो ये जीएसआई के बंदे से जब पूछोगे तो तुम वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं हमेशा, ओएनजीसी के बंदों से पूछोगे तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि वो ट्रांसफर करते रहेंगे, एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन नहीं करेंगे। जियोलॉजिस्ट भी एक, और जैसे मैं पहले ये करता था, फॉसिल्स इकट्ठे करता था, तो फॉसिल्स इकट्ठे करता था, पर मैं पेलियोंटोलॉजिस्ट नहीं था। मतलब ठीक है मैं फॉसिल्स इकट्ठे करता था, इतना ही शौक था कि अब मेरे को ये पता लग जाता था इस पत्थर में हाथ मारूंगा तो इस एनवायरनमेंट में है तो यहाँ पे फॉसिल मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ये आपको पता लग जाता है। पर उसने हेल्प किया मेरे ग्राउंड वाटर में, क्योंकि चैनल कहाँ पे है, चैनल आपको चैनल स्पीशीज आइडेंटिफाई करना आ जाएगा पत्थरों को देख के। आप सी में हो, लेक में हो, बीच में हो, सारी पत्थरों को देख के जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको मजा ही नहीं आएगा जियोलॉजी का। गए हो, वापस आ गए हो, और यही एनवायरनमेंट ही नहीं बता पाए हो आप कौन से एनवायरनमेंट में थे, तो आपको जियोलॉजी का मजा नहीं आएगा। अब जैसे आप यहाँ पे हो, कौन सी मिट्टी है, यहाँ पे मिट्टी कौन सी है, और ये मिट्टी कैसे आई यहाँ पे पत्थर क्यों नहीं मिलते हमारे को चंडीगढ़ में, ये सारे क्वेश्चन आपको अपने आप करने, फिर इसके आंसर ढूंढने। जो बच्चा इसका आंसर ढूंढता रहेगा उसको प्यार होता रहेगा जियोलॉजी से, और वो अच्छा जियोलॉजिस्ट बनता रहेगा। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी ब्यूरल साइंस, अगर एक शब्द में इसको is defined as post-mortem examination. और फिर पहले हमारे को सिर्फ यहाँ पे जब हम पढ़ते थे, आपने कोई ऐसे किताबों में तो पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कसौली में हमारे को सिर्फ सिलिसिफाइड वुड मिलते थे, तो कार्बोनाइज्ड वुड कभी नहीं मिला। तो यहाँ पे जहाँ पे कार्बोनाइज्ड वुड मिल रहा है, इसमें यूरेनियम रिच मिल रहा है। ये इन्होंने एएमयू वालों के साथ काम किया था, तो उनको ये सारे के सारे यहाँ पे इनरिच्ड यूरेनियम के डिपॉजिट्स, कार्बोनाइज्ड यहाँ पे मटीरियल, तो ये बड़ी ये जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक मैटर प्रिजर्व हो रहा है, तो वहाँ पे यूरेनियम आ रहा है थोड़ा सा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सारा। और जब इसको हमने वैसे रखा तो आप क्या होता है, नॉर्मली अगर आप स्पेसिमेन को रखो तो इसको वैसे ही रहना चाहिए कार्बन वुड को भी, जैसे कोयला है, पर ये डिके शुरू हो जाता है। मेरे पास एक स्पेसिमेन पड़ा हुआ था, वो मैंने घर में लगाया हुआ था इसका, आप अगर उसको देखोगे ना तो वो बड़ा डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मेरे को लगता है जैसे, तो ये यूरेनियम का क्या इम्पैक्ट है इसका, वो मतलब ये हर चीज़ में तुम कुछ भी लेते हो। तो अब इसमें हमारे पास कसौली में मतलब 27 फुट फॉसिल साइट, और ये मतलब 75 फुट के पेड़ हमने 75 फुट लंबे। अब ये सारे कई बार क्या होता है तुम्हारा, अब जब पहले थे जैसे आप जैसे यंग थे तो हम किसी से लड़ पड़ते थे कि वहाँ माइनिंग हो रही है, वो हो रहा है, यार यहाँ पे फॉसिल है, तो नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट योर फॉसिल, तो वो एक्सकेवेशन में चले जाते हैं, कई बार वो रोड वाइडनिंग में चला जाएगा, या कोई बंदा अपना घर बना रहा है, या कई बंदे अपने ये रिटेनिंग वॉल है, ये कैरोफाइट की साइड थी। अब जब हम गए तो बीएसआईपी की टीम आई हुई थी, तो कैरोफाइट्स पे रिसर्च करना गए थे, तो यहाँ पे रिटेनिंग वॉल लगाई हुई किसी ने, क्योंकि वो कुछ उसको लग रहा होगा कि यहाँ पे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ती हैं। और फिर ये गवर्नमेंट ने, हिमाचल गवर्नमेंट ने 7 करोड़ रुपए दिए थे इसको, जो मेरी कलेक्शन थी उसको बनाने के लिए। तो टूरिज्म की साइड जो रॉसकॉमन, न्यू रॉसकॉमन है, उसमें 2 बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, अगर आप जाओगे अभी, तो तीसरा बनना था, तो एनजीटी ने ऑब्जेक्शन कर दिया, तो वो म्यूजियम वाली साइड को उन्होंने काट दिया, वो टूरिज्म नीचे होटल था, ऊपर वो बनना था, तो बड़ा अच्छा ये बन जाना था जितनी भी हमारी ये था, तो वो इसलिए नहीं, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो अब क्या था, फिर ये मेरे गाइड, जब मेरे पास ये सब आ गया, तो ये मेरे गाइड, मैंने प्रोफेसर अशोक सानी के साथ काम करना शुरू किया, तो कहते हैं कि यार तेरे पास मटेरियल तो सारा है, अब स्कॉलरशिप है नहीं, पैसे चाहिए होते हैं। तो उस टाइम हमारी ना यहाँ पे हिमाचल में नौकरी निकली थी 82 रुपीज़ 80 पैसा की, 82 पैसे की, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय करते थे। तो हमारा खर्चा जैसे मैंने कहा 250-300 रुपये आता था, 200-250 रुपये महीने का, और वहाँ पे 2500 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं हमारे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि, तो ये सानी सर कहते हैं कि तू ऐसा कर, ये तो पीएचडी तो तेरी हो ही जाएगी, तेरे पास मटीरियल सब है, तो आते आते कर लियो, तो तू वाई डोंट यू गो, फिर दिस इज प्रैक्टिकल जियोलॉजी, तो तू यहाँ पे चला। तो ऐसे गाइड भी बड़े कम होते हैं जो ऐसे इंकरेज करें कि तुम, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि आपको वो पकड़ के रखेंगे हमेशा, और यहाँ पे ऐसी चीज़ थी, तो गाइड का मिलना भी एक बहुत अहम चीज़ होती है, क्योंकि जब आप पीएचडी करते हो तो आप ये समझो कि एक माँ बाप आपके होते हैं जो जिन्होंने आपको जन्म दिया, और एक जो पीएचडी करते हो
वो भी आपके साथ नाम पूरी ज़िंदगी जुड़ जाता है, वो भी एक तरह से आपके पिता के समान है, समझ रहे हैं आप? तो हमेशा जब भी गाइड चुनना है तो बहुत सोच समझ के चुनिए। और फिर इन्होंने क्या किया, फिर हमारे को हो गया, उसके बाद मेरे को फ्यूल ऑयल के लिए वहाँ पे जो एक कॉन्फ्रेंस किया था इन्होंने लखनऊ में, जिसमें ओएल वाले आए थे, ONGC वाले आए थे, तो जियो वो मैं आता हूँ जियो थर्मल में, तो वो उसमें गया। तो अब ये था हाइड्रोजोलॉजिस्ट की वहाँ पे नौकरी मिल गई। अब सोचो कि आपको मैं कैंपस इंटरव्यू लेने आया हूँ और मैं बोलता हूँ यार नौकरियाँ करनी है, आप कहेंगे हाँ जी। अब MSc हमने डिग्री के आपके पास MSc, ऐसे ही मेरे साथ था। हम जब वहाँ पे इंटरव्यू देने गए तो कुछ अब पढ़ते भी हम ऐसे थे कि पढ़ लिए तो मैं हॉस्टल ज़्यादा ढूंढता रहता था या इधर उधर की पंगे ज़्यादा लेते थे सारे हम। अब इसमें क्या था कि जब इंटरव्यू हुआ, हमारी सिलेक्शन हो गई, तो उन्होंने बोला इमीडिएटली अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और बोला कि आप जाओ जी, आप हाइड्रोजोलॉजिस्ट बन गए, आप जाके एक्सचेंज को रिपोर्ट करो भुट्टा में, हमीरपुर में जाके। तो मैंने बैग उठाया, बस में चढ़े और वहाँ पे पहुँच गए भुट्टा में। मैं उसके पास गया एक्सचेंज के पास, तो वो बोलता कि चलो चलो, हम तो आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, आप भुन्ना से आए हैं। मैं कहा तो कहाँ चला? कहते यार यहाँ पे चलेंगे हम। गाड़ी में बिठाया उन्होंने और गए वहाँ पे। भुट्टा के पास एक गांव था, नाम मैं भूल गया, लेकिन वहाँ पे सारी जैसे पंचायत के लोग, MLA, सरपंच, ये सब वहाँ पे खड़े हुए और साथ में एक ड्रिलिंग रिग खड़ी थी। मेरे को नहीं पता था ये ड्रिलिंग रिग है। तो बोला कि करना क्या? मेरे को बोला ऐसे, कहते कि भाई ऐसा है कि आपका इंतजार कर रहे हैं सारे। मैंने क्या करना है यहाँ पे आके मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई आप वहाँ पे जियोलॉजिस्ट हैं, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हैं, आप बताओगे साइट कहाँ पे है, फिर ये ड्रिलिंग रिग लगाएंगे, फिर पानी आएगा तो ये लोग पिएंगे। दिस इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। जब MSc के बाद आप जाओगे, कोई ये नहीं मानेगा कि आपने क्या किया, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, पर जब आप प्रैक्टिकल में चले जाते हो जिंदगी में, तो दे एक्सपेक्ट कि आपको सब कुछ पता है। अब ट्रेनिंग वहाँ पे क्या होता था, जब मैंने किताबें पढ़नी शुरू की तो माउंटेन्स, जैसे कसौली इज अनफॉर्चुनेट फॉर अस, माउंटेन्स आर डिवाइड ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, तो यू हैव टू गो इनटू इंटर माउंटेन वाले रीजन, जैसे अपना नालागढ़ आगे, बद्दी आगे या ऊना आगे, ये इस वैली में हो रहा था एक्सप्लोरेशन। और पाकिस्तान, अमेरिका कर रहा था वहाँ पे, तो वो भी वहीं से था, अफगानिस्तान में भी वही कर रहे थे। माउंटेन्स कभी भी ऐसा माना नहीं उन्होंने कि अब हम क्या किया, अब समझ तो कुछ नहीं आया। तो ऐसा था, समझ लो जैसे ये गांव था और यहाँ पे नीचे एक स्ट्रीम बह रही है। अब मैंने, अब ये भी नहीं बोल सकते कि तुमने MSc किया और तुम्हारा कुछ आता जाता नहीं है ना, वहाँ पे क्या बोलोगे तुम? तो घुमा ऐसी परेशानी सी हो रही थी। तो मैं गया वहाँ पे, देखा, मैंने कहा नीचे नाला है। अब वहाँ पे नीचे चला गया, फिर मैं अब कुछ दिखाना तो था कि मैं कुछ कर रहा हूँ नहीं। और वाकई वहाँ पे लग भी रहा था कि मैं क्रॉस सेक्शन ही देख लूँ इसका। जिंदगी में कभी क्रॉस सेक्शन यहाँ पे नहीं देखा होगा कि कैसे करते हैं, क्या करते हो, लेकिन वहाँ पे देखा। फिर वहाँ पे लगा मेरे को कि यार यहाँ पे शायद यहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट आ रहे हैं, यहाँ पे ये आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे, नीचे एक स्प्रिंग सोर्स था, मेरे ख्याल से यहाँ पे हम पंक्चर करेंगे। तो फिर उसकी ना अलाइनमेंट बना के, मेरे साथ एक बंदा था, हम अलाइनमेंट बनाते बनाते आ रहे हैं ऊपर कि यहाँ से सीधा यहीं पे लगाना। अब वो गाड़ी लगानी है, वो कहते हैं यहाँ पे लग नहीं रही, नहीं यहीं पे लगानी है, क्योंकि आई वांटेड टू बी श्योर कि वहीं पे लगे। तो क्या हुआ, फिर वो ड्रिलिंग शुरू हुई। अब वहाँ पे मैं भी खड़ा हो गया कि आ रही है, पहली बार मैं देख रहा हूँ कैसे ड्रिलिंग हो रही है। तो करते करते उस थोड़ी देर बाद कोई आ रहा है, पानी तो बह पानी में दिल कर रहा है। शाम हुई, 165 फुट के करीब, थोड़ा सा ना पोस्ट इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर को उछाला मारा तो पानी, थोड़ी देर बाद वो पानी भड़क करके निकल पड़ा। शाम तक हीरो बन गया। सारों ने बाबा जी आ रहे जी, आए और उन्होंने निकाल दिया जी, अब ये है जी, वो है जी। इतने सालों से पानी नहीं था, मेरे खुद नहीं समझ आ रहा क्या तो इस तरह से जिंदगी क्या होती है तुम्हारे को। अच्छा, हाँ, तो उस तरह से तो हमारे कोई ट्रेनिंग थी नहीं। तो अब हम पहुँच गए यहाँ पे, तो ये हो गया। आगे 2-3 साइट्स ऐसे मेरे को बड़ा मजा आने लग पड़ा। फिर जब हमारे को रिकॉग्निशन शुरू हो जाए ना, खाना फ्री में मिल जाता था। 25 रुपये बच रहे हैं, गांव में जाओ जी, ये सर हमारे घर में खाओ, कुछ कोई लेके आ रहा है, कुछ फिर अगली साइड गए, अगली साइड गए, 2-3 साइट्स हमारी ऐसी गई। मैं ऐसे ही देखता था और ये सक्सेसफुल हो रही है, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। और वहाँ पे नाम हो गया जी, ये तो जहाँ पे भी
हाथ लगाया आगे पानी आ रहा है और मेरे को पता है मेरे को कुछ नहीं पता। आगे ये तो भोटा बस स्टैंड था एक, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे मैं तो बड़ा आसान है यार, पीछे 5-6 बोर्ड तो हमने ऐसे ही किए हैं तो कुछ नहीं है। तो कहते कहाँ लगाएं? मैंने तुम ऐसा करो, ये बस स्टैंड बस यहाँ पे रेन शेल्टर है और रेन शेल्टर के साथ लगा लो, जल्दी बंदे आएंगे। अब क्या हुआ, तुम कॉन्फिडेंस करते हो तो थोड़ी बहुत जो जियोलॉजिकल नॉलेज उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और वहाँ पे मैंने कहा बस वो इसके साथ लगा रहे रेन शेल्टर के साथ। और ऊपर सामने देखा मैंने, तो सामने देखा तो ऊपर पहाड़ी के ऊपर कोई किला होता है, अब फोर्ट है। अब उस टाइम क्या है, रात दिन मेरे दिमाग में पानी 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 है। तो फोर्ट को देखा, मैंने गाड़ी लगाई उसके साथ और मैं चला गया। मैं कहा मैं अभी आया, एक बंदे को साथ में लिया और ऊपर पहुंचे तो फोर्ट में आ रहा है कि फोर्ट टॉप ऑफ द हिल, सपोज करिए टॉप ऑफ द हिल है। अब यहाँ पे फोर्ट बना हुआ है, अब यहाँ पे हम गौर कर रहे हैं, नीचे ये प्लेन है। अब हिल में चलते चलते पहाड़ किसी पहाड़ी है तो पूछो तो वो यही बोलेगा जैसे यार यही ऊपर है, 4 घंटे लगे चलते चलते। ऊपर एक बुजुर्ग आदमी मिला, भीड़े चढ़ा रहा, तो मैंने बोला था यहाँ पे कोई किला है इसमें, पर ये लोग पानी कैसे पीते पुराने ज़माने में? कहते हाँ, हमारे दादे बताते थे कि यहाँ पे 2 कुएँ हैं इस किले के अंदर। अब देखो टॉप ऑफ द हिल 2 कुएँ, चॉप किया होगा उसको, अभी तक 800 साल की एज है, 800 या 1000 साल की उसके ऊपर, और सीमेंट नहीं, सरिया नहीं, अभी तक इंटैक्ट। हम गए वहाँ पे तो हमने देखा, तो कहता वो हमने बंद कर दिए थे क्योंकि वो कोई जब ये खाली कर दिया वहाँ पे कोई भेड़ वोड़ गिर गई होगी, जानवर तो और ना गिर जाए उसके कारण हमने बंद कर दिया उसको। पर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको नजर आ जाएगा ग्रीनरी बहुत है, कैपिलरी एक्शन से पानी आ रहा होगा। गए वहाँ पे हमने 2 कुएँ आइडेंटिफाई कर दिए, वो यूरेका वाली फीलिंग आ गई। पर एक सैल्यूट आया हमारे एंसेस्टर्स को जिन्होंने वो टेक्निक डेवलप की है कि कैसे एक्सप्लोर करते हैं ग्राउंड वाटर, कैसे जियोलॉजी को यूज़ करते हैं टॉप ऑफ द माउंटेन्स के लिए और जियो वॉरफेयर के लिए, प्लानिंग के लिए आपको कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि जब तक आप जियोलॉजी की प्रैक्टिकल ये था हमारे पास कि सैंडस्टोन सीमेंट उन्होंने फिर निकाला, फिर उसको मैंने देखा कहाँ से मिला ये सीमेंट, वो जो बनाते हैं क्ले और इसको लाइमस्टोन को मिक्सचर करके फिर जलाते हैं, कितना जलाना है, उसके बाद सीमेंट बनाया और आज तक वो आप किसी सीमेंट की बोरी लोगे जो आपकी बिल्डिंग्स हैं ये 50 से 70 साल तक की लाइफ है जो ये प्रेजेंट सीमेंट होता है। उसके बाद एनीथिंग कैन हैपन टू दिस बिल्डिंग एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी अनसेफ। और ये बिल्डिंगें 70-70 साल तक चल रही हैं। तो जियोलॉजी का परफेक्ट एग्जाम्पल यूटिलाइजेशन का ये मिला। शाम होते होते हम नीचे आए, वो देखो उस बंदे ने क्या होता था, ड्रिलर जैसे मैं ड्रिलिंग कंपनी चलाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मेरा ड्रिलर होता है उससे एक वादा होता है कि हम तेरे को फुटे लेंगे कि जितनी तू फुट करेगा उसका तनख्वाह के अलावा फुट का होता है। तो ड्रिलर की क्या होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिल करे, और एक जियोलॉजिस्ट की क्या होती है कि ज़्यादा नहीं ड्रिल करना, क्योंकि जैसे खून है वो हमने रियलाइज अब ये किया, जैसे हमारा खून है बॉडी में बह रहा है वैसे ही पानी भी बहता है। अगर हम ज़्यादा ड्रिल कर देंगे तब भी खून नहीं मिलता, नहीं सुई लगा देंगे पानी नहीं मिलेगा, या हम अपनी बॉडी को डैमेज कर देंगे, वैसे ही हम धरती माता को डैमेज कर देते हैं अगर हम ज़्यादा ड्रिल कर देते हैं। और ज़्यादातर जितने भी बोरवेल्स यहाँ पे होते हैं उसमें कोई जियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। उसका मेरा ये मतलब है कि CGW की बी के बंदे कभी भी साइड पे नहीं होते, तो सिर्फ कोई सैंपल ला के उनको दे देगा, उसके साथ वो स्टडी करते हैं। ऐसे जियोलॉजिस्ट मत बने, क्योंकि तब तक आप डेटा या कुछ भी कंपाइलेशन नहीं कर सकोगे जब तक आप सैंपल अपने हाथ से नहीं कर सकोगे। तो ऐसा हुआ, जब मैं नीचे पहुंचा 300 फुट ड्रिल हो चुका था, एक भी बूंद पानी की नहीं, सब मिट्टी उड़ रही है, धूल। 300 फुट बहुत होता था उसमें। तो हमारे को ये लगता था कि मैंने अपनी जेब से पैसे देने हैं तो ये ड्रिलिंग करना है। तो हमारे को ये सिखाया गया था, जैसे जो थोड़े से हमारे से यहीं से गए थे बंदे, मल्होत्रा वगैरह ये सब, कि जब आ गया तो ताली मारो, और जब नहीं आया तो बोलो एक्सपेरिमेंट कर लेते नहीं, और सही बात है क्योंकि नया एरिया है, सारा तो एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है। पर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा था, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो चुका था 300 ऊपर जो फुट। यहाँ पे हमारे को 24/7 वाटर मिल चुका है, वहाँ पे कोई ड्रिलिंग रिग नहीं है। तो एक बैक ऑफ द माइंड पे आ गया कहीं गड़बड़। अब ये गड़बड़ हो गई तो फिर पंगे हो जाते हैं फिर शुरू कि भाई मेडलिकॉर्ड ने फॉसिल निकाल दिया था और तुम बोल रहे हो कि अनफॉसिलिफरस है। तो मैं अब यहाँ पे है कि पानी ऊपर है और यहाँ से पानी नीचे है, बोल रहे हो तुम एक्सपेरिमेंट करो। नहीं, एक्सपेरिमेंट हो चुका है, पानी है, हमारी कहाँ पे प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम आ गई।
फिर ये 3 साल मैंने किसी की नहीं तो इसमें क्या होता है, अब इसमें होता है जब तुम नौकरी में जाओगे तो जियोलॉजिस्ट की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर हम जैसे हाइड्रोजियोलॉजिस्ट बन गए तो मेरा पिंडा, मैं यहाँ पे जैसे MP हूँ तो मैं बोलूँगा ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का गढ़ है, इसको छोड़ दे, इसमें आना चाहिए पानी, ट्यूबवेल नहीं भी लगना है, ये प्रधान के घर के आगे लगना है। तो ये पॉलिटिकल प्रेशर भी हमारे पास बहुत काम करता है। फिर मैंने सब दरकिनार कर दिए। अब मेरे पास क्या था, फिर ये सारे कोर्ट स्टडी किए। जब कोर्ट स्टडी किए तो मेरे पास 3 पैरामीटर्स आए कि जो पूर्वज देखते बनाते थे। फिर मैं गया NGRI, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जितनी भी ये रेजिस्टिविटी सर्विस हैं ये सारे मैंने स्टडी किए, टेक्निक सारी स्टडी की, HQ। तो जब हम वो ले आए इंस्ट्रूमेंट तो उसमें क्या होता था, अगर 60 to 70% सक्सेस रेट आपका है तो उसको 100% मान लो। 3% मतलब 30% तक वो भी बोलते हैं कि 10 बोर किए तो 2-3 बोरवेल फिर हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वो ऑयल में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। वहाँ पे क्या है कि अगर आप 10 बोरवेल करते हो, अगर एक सक्सेस हो गया या 15, अब जैसे राजस्थान में इसने किया था, वेदांता ने किया था, 13 बोरवेल सक्सेस किए मेरे ख्याल, 13 बोर फेल किए, 1 बोर सक्सेस हो गया और वो इसकी बन गया गेम। तो ऐसे चलता है काम। लेकिन हमारे पास क्या था, आई वॉन्टेड टू डेवलप अ टेक्निक विच वॉज 100% सही। तो अब इसके बाद करते करते जब सुनते नहीं हो किसी की तो आपकी ट्रांसफर बहुत होती है। मेरी मतलब मैं 300 नौकरी की है गवर्नमेंट में, और मेरी कम से कम हर 6 महीने के बाद ट्रांसफर हो जाती थी। तो उससे क्या हुआ, हमीरपुर, ऊना, नालागढ़, सोलन, शिमला, रामपुर, रिकांगपिओ, हाँ। और हर बार मैं नई जगह में जाता था, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। तो काम क्या था कि फिर मैंने तब तक क्या किया था, ये जैसे फोर्ट्स की बात है, ये ऐसे फोर्ट्स आपको मिलेंगे। ये बनासर का किला है, कहाँ का बनासर, ये बनासर वाला है। और ये मरौन का किला है, जहाँ पे हमारी अंग्रेजों ने गोरखास को हराया था जब वो आए थे यहाँ पे, और तोपे लेके गए थे टॉप पे। तो यहाँ पे भी वही है। तो अब क्या था, एक मिशन आ गया कि 100% एक्यूरेसी चाहिए मेरे को, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये टेक्निक डेवलप करी थी। तो हमने क्या किया, इसमें रिमोट सेंसिंग वगैरह सब फेल कर दिया। मेरे को पता लग गया था कि ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन इन हिमालयज इज बियॉन्ड जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशंस एंड रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स। और वो क्या था, सिंपल जियोलॉजी। उसमें 3 प्रिंसिपल ये फिर अटक गया ये। चल रहा है। तो उसमें थे, अब 3 फैक्टर्स क्या थे, वो लिथोलॉजी, स्ट्रक्चर और जियोमॉर्फोलॉजी। अगर आपके ये 3 फैक्टर्स तो उसके बाद तो यही चलता रहा हमारा। अब इससे क्या हुआ, मेरे को पूरे हिमालयस का क्रॉस सेक्शन पता लग गया, डिफरेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में कैसा ग्राउंड वाटर बिहेव करते हैं। अब ये 3 फैक्टर्स हमने ढूंढ लिए। अब इसको एक होता है पढ़ना, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसमें बहुत टाइम लग गया मेरे को। और उसमें भी ये नहीं होता था कि मैं हमेशा सक्सेस रहता था, कई जगह फिर बाद में जब एनालाइज करो इनको तो पता लग जाता था हमने गलती कहाँ की। और 1996 में क्या हुआ, मैंने ये एक IGC हुआ था, इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस, बीजिंग में। तो उसमें ये पेपर प्रस्तुत किया। तो जॉनी मोर था वहाँ पे, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का चेयरमैन है वो, वहाँ पे वो चेयर कर रहा था। तो छोटी सी इन शॉर्ट करूँगा उसमें। तो मैंने पूरे हिमालयस को पहली बार ये वर्ल्ड हाइड्रोस्ट्रेटिग्राफिक जोनेशंस मैंने कॉइन किए। और इसके बाद क्या था, इसको 6 जोन्स मेरी जो थी वो हिमाचल में थी, और 7वीं जोन जो थी वो लद्दाख में थी। अब मैं सोचता था यार कि अब मैं, वो मेरा सिर्फ एक थ्योरेटिकल मॉडल था कि लद्दाख में कैसे निकलेगा पानी। अब यहाँ पे तो सक्सेस आना शुरू हो गया हमारा 100%। और जब मैं वहाँ पे गया तो ये अपना ऋषि ठाकुर है मेरे ख्याल, और KP सिंह सब भी गए थे, ये सब उसमें थे। तो इसमें अब क्या हुआ, यहाँ पे एक जब ये कॉन्फ्रेंस में, तो मेरे को एक अंग्रेज मिल गए वाटर एड से। वाटर एड एक NGO है जो वर्ल्ड वाइड वाटर प्रॉब्लम्स जब कम्युनिटीज़ में होती हैं, इंग्लैंड में है, क्वीन रन करती है इसको। तो इन्होंने क्या किया, दे वांटेड मी एज एन एक्सपर्ट टू डेवलप ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज फॉर 3,800 Tibetans who migrated with Dalai Lama ji from Tibet following Chinese aggression। और वो दलाई लामा यहाँ पे आ गए। ये कुछ थे जो आज आप बॉर्डर, अब ये सुन रहे हो ना, देमचौक गलवान में तो नहीं, कि अपना चांगथंग एरिया जितना भी है
उसमें सारा ये तिब्बती कम्युनिटी बैठी हुई है और स्कैटर्ड थे ये। अब इनको पानी देना है। तो मैं ये सोचता था कि जब मेरे को उन्होंने प्रोजेक्ट दिया तो अब यहाँ पे जब इशू आए तो गवर्नमेंट में क्या होता है कि तू यहाँ से चला क्योंकि भाई कॉन्फ्रेंस में किससे पूछ के गया था तो ये वो चलता रहता है। तो मैं बाईपास करके सिस्टम चला गया था। अब वहाँ पे आए तो इसमें ये जो दलाई लामा जी का प्रोजेक्ट है मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मेरे को लगा जैसे भगवान ने मेरी सुनी है कि 7वीं जोन मेरी लद्दाख में है, 6 जोन यहाँ पे हैं और 7वीं जोन को अगर मेरी वो मॉडल सक्सेसफुल है तो इसको मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है। तो ये इन्होंने यहाँ पे जो जितनी भी तिब्बत की प्रॉब्लम है हमारे पास, तो ये क्या है जियोलॉजिस्ट एक सिर्फ एक जियोलॉजी नहीं है, जियोलॉजिस्ट जियो पॉलिटिक्स भी है। आपको ये सब समझना पड़ेगा कि कैसे ये सब चीज़ें चलती हैं और कैसे ये देखो अब ये सारा का सारा चाइना का कभी हमारे पास नक्शा मैप नहीं था। ये तिब्बत यहाँ पे हमारे पास तिब्बत के साथ हमारे सारे बॉर्डर्स थे जितना भी हम अरुणाचल से लेके वहाँ तक करते हैं। इसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी तिब्बत के साथ। तिब्बत बेचारे ऐसी भगा वो चले गए दलाई लामा यहाँ पे आके इसने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। अब ये बोलता है सारा बॉर्डर ही हमारा है और ये अभी जितनी भी लड़ाइयाँ हमारी हो रही हैं कोई डिफाइंड बॉर्डर चाइना के साथ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही वो लड़ना चाह रहा है हमारा कि नहीं ये मेरा है। तिब्बत के साथ हमारा कभी कोई। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर ये जो किया तो मेरे को जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया वहाँ पे तो मेरे को लगा कि ये कर देगा। तो मैं वैसे जैसे हाइड्रोजोलॉजिस्ट 2500 रुपये महीना, तो इन्होंने पूछा कितने हाउ मच विल यू चार्ज, मैंने कहा 1 महीना लग जाएगा मेरे को। तो मैंने बोला 20, तो उसके मुँह से निकला 25,000। मैं कहा 25,000 मैं कहा यस। तो मैंने नौकरी छोड़ी सरकारी जो मैं करता था। मैं तो 25 साल 1 साल मिल गया, कौन नौकरी करेगा यहाँ पे, और मेरे को लद्दाख में पहुँचना था वैसे। तो फिर गया, फिर यहाँ पे एक जर्मन एक्सपीडिशन भी था, सनी सर के स्टूडेंट्स आ रहे थे जर्मनी से, तो उनको मेरे को बसों में लेके जाना था वहाँ पे। तो बसों में नहीं, वहाँ से खाली बस लेके जाना था और ले से वापस लेके आना था। पर समहाउ मनाली में लैंडस्लाइड आ गई, बसें वापस आ गई, तो मेरा ये दोस्त बन गया था शिंगारा। तो इसके साथ मैं पहली बार बैठ के ना ऑयल टैंकर में गया था ये मस्ती से। तो मेरे पास 200-250 रुपये थे उस टाइम, तो इसको मैंने दे दिए थे। तो ये कहता मैं ले चलूँगा आपके लिए देसी घी, मैंने कहा कि रास्ते में छोड़ दिया। तो ये इस तरह से। और जब भी वहाँ बैठ के मैं कोई पहाड़ियों के बारे में सोचना चाह रहा था तो ये था कि ये कौन चित्रकार है, इससे अलावा मेरे पास कोई लाइन ही नहीं निकली। इतना प्यारा लैंडस्केप अगर आप कभी मतलब जो बंदे गए होंगे। तो फिर मैं इनके साथ ये CRO है सेंट्रल, ये एज लाइक गवर्नर है वहाँ पर तिब्बतियों का, दलाई लामा जी यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट रन करते हैं। तो उनके साथ बैठ के मैंने सारी ये सेटलमेंट्स रन की और ये देखा तो पहले के जितने भी प्रपोजल्स थे इनके वो थे कि इंडस वहाँ पे बह रही है, आप इंडस के पास पंप लगाओ और वहाँ से उठाओ और डीजल से पंपिंग करके हम तिब्बतियन कम्युनिटी को दे देंगे। पर जो ये वाटर रेट था ये एक बार की इन्वेस्टमेंट करना चाहता था जितनी भी है, और उसके बाद नहीं करना चाहता था। अब ये बेचारे डीजल के पैसे कहाँ से लाएंगे, जो तिब्बती आए थे वहाँ से ये पोर्टर का काम करते थे वहाँ पे। उसके बाद और ये प्रॉब्लम थी यहाँ पे फ्रीजिंग थी, सर्दियों में फ्रीज हो। आज जाओगे तो तुम लद्दाख में यू कैन वॉक ऑन इंडस, चादर एक्सपीडिशन बोलते हैं उसको। और गर्मियों में वहाँ पे सिल्टिंग इतनी होती है कि पानी पी नहीं सकते हो। तो कुछ होता है सितंबर का महीना जहाँ पे पानी साफ होता है। तो ये मैंने कहा ये स्कीम भी बहुत फेलियर है। तो मैंने उनको एक रिपोर्ट बना के दी थी उस टाइम, ये 1996 की बात है, कि ऐसे करना है। तो कहते हैं आप कह रहे हो, पर चलो आप कह रहे हो तो ठीक हो, कह रहे होंगे, लेकिन अगर पानी नहीं आए तो मैंने कहा फिर मैंने ये कंसेप्ट शुरू किया। तो फिर हमारे पास अथॉरिटी होगी थी, मतलब यहाँ पे कि जो भी हम बोल करते थे 100% सक्सेस आना शुरू हो गया। तो मैंने बोला कि इफ़ यू गिव मी द प्रोजेक्ट आई विल वर्क ऑन नो वाटर नो मनी बेसिस। तो ये बड़ा उनको अच्छा सा लगा कंसेप्ट। अब मैंने बोल तो दिया, मेरे को ये था, मैं बैकिंग कर रहा था कि जो मेरे ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहे हैं मैं उनको बोलूँगा, रेट मैंने डबल कोट कर दिया वहाँ पे, कुछ मेरे पैसे बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने किया और दे डिडंट टर्न आउट। जब ठेकेदार की वहाँ पे ले फंस जाएंगे हम। फिर अगले साल मैंने कहीं से रिसोर्सेज जनरेट करके, कुछ उन्होंने भी मदद की, कुछ इधर से करके एक ड्रिलिंग rig खरीदी और फिर ले जाने लगे। अब जब ले जाने लगे तो उसमें ये प्रॉब्लम आ गई, तब कारगिल की टेंशन बहुत ज़्यादा थी। तो उसमें ये वो जगह है जहाँ पे तोलोलिंग टाइगर हिल और वो सारी जगह है। तो हमारे को रात को क्या हुआ कि ये पहले तो जाने नहीं दे रहे थे, फिर उन्होंने बोला रात को तुमने क्रॉस करना है, क्योंकि ये टैंक समझ के वो शेलिंग पक्का करेंगे क्योंकि ये हायर एलिवेशन पे। तो यहाँ पे ये लगा हुई यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन और ध्यान से चलो, मतलब रात को चलो।
अगर उड़ा दे तो तुम्हारा उसकी एक दीवार है। तो मतलब ये कंडीशंस थी कारगिल में, ये 96-97 की हमारी हालत थी। और फिर हम पहुंचे वहाँ पे, पहला बोरवेल किया हमने, सक्सेस हो गया, उनको भी जान में जाना है और मेरा भी आया। ऐसे करके हमने काफ़ी वहाँ पे बोर किए और 97 और 98 के बाद 98 में हमने 3800 तिब्बतियंस को लेह से लेके सुमदो, चांगथंग एरिया, चुमोर, इन सब जगह में हनले जहाँ पे हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे पानी दिया। तो दे हैड 24/7 वाटर व्हिच इज रनिंग सक्सेसफुली टिल टुडे। वी आर सेलिब्रेटिंग। तो इस तरह का जियोलॉजिस्ट काम करो, एक बार की इन्वेस्टमेंट हेलो और आज तक वो आपके पानी चल रहा है। तो दिस इज द पावर ऑफ अ जियोलॉजिस्ट। हेलो कटिंग द कॉस्ट, गिविंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। क्योंकि हमारे को क्या है कि हमेशा याद रखना, हम मिलियंस ऑफ ईयर्स में बात करते हैं। हमारी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो भी मिलियंस ऑफ ईयर्स की होनी चाहिए, जो हमारे सॉल्यूशन होने चाहिए वो भी मिलियंस ऑफ ईयर्स की होने चाहिए, तब कहीं जाके हमारी कोई सुनेगा। इंजीनियर डोमिनेटेड सोसाइटी है, जब आप जाओगे तो आपके साथ कोई ना कोई इंजीनियर जुड़ा रहेगा और वो अपनी 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 धौंस जमाने शुरू कर देते हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स में आज तक, चाहे वो आर्मी के साथ है चाहे कोई भी है, कोई ना सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का जियोलॉजिस्ट है, कोई भी नहीं आता, क्योंकि उसको पानी से मतलब है, खेलों से मतलब नहीं है, इकोनॉमी से मतलब है। अगर कोई 50 लाख बोलेगा तो मैं 25 लाख में काम करके देता हूँ। तो इस तरह के काम हम करते हैं, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। और ये किया हमने, और ये सारा तो पहली बार ये रेवोल्यूशन था कि ग्राउंड वाटर कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन कोल्ड माउंटेन डेजर्ट्स एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। तो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। नहीं तो सीजीडब्ल्यू के भी जो बोर हमने देखे थे वो ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस वो करते थे उस टाइम। तो फिर ये तिब्बतियन की, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, इनके भी प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये उनके प्राइम मिनिस्टर हैं लामा जी उस टाइम थे। तो इन्होंने थोड़ा सा सम्मान किया। जब मैं ये काम करता था तो मेरे को सम्मान की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि लेह से यहाँ पे आना बहुत मुश्किल था। तो मैंने एयरपोर्ट से बताया अपना कि मैं सर ऐसे कर रहा हूँ, एयरपोर्ट के साथ हमारा टाइप हो गया। उन्होंने कहा वी विल हेल्प यू, पर तुम्हारे को भी हमारी करनी पड़ेगी, बिकॉज वी ऑल्सो हैव प्रॉब्लम इन आवर लेह एयरपोर्ट स्टेशन। तो इट वॉज अ विन-विन सिचुएशन। तो हमने ये क्या किया कि विंग कमांडर के काम चलते हैं, और ये अब तो लेह एयरपोर्ट बहुत बदल गया, पर ये दिस वॉज द सिचुएशन देयर। तो हमने यहाँ पे भी पानी निकाला इनके लिए। फिर ये एयर मार्शल पटनी आए थे दिल्ली से, क्योंकि तब कारगिल में थोड़ा टेंशन ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे। तो दे वांटेड समथिंग टू डू इट थॉइस। तो थॉइस में क्या प्रॉब्लम होती है, अगर तुम सियाचिन में जाओगे तो थॉइस की एयरफील्ड क्या है, यहाँ पे है, श्योक रिवर यहाँ पे है, और इनकी जो बेसमेंट यहाँ पे, जब वो पाइपलाइन श्योक उससे आती थी तो सर्दियों में ये फट जाती थी। तो उससे क्या होता था, वो पानी उसमें आ जाता था, एयरफील्ड बम्पी हो जाती थी, आईएल लाइन लैंड नहीं कर सकता था, जो इनका कैरियर लाइफ लाइन है वहाँ की। क्योंकि अंडा भी जाना है यहाँ पे, दूध भी जाना है, चावल भी जाना है, कोई भी जाना है वो यहीं से जाता है लेह में। मतलब इतनी प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो उसका प्रोजेक्ट मिला हमारे को। तो हमने ये 50 लाख का प्रोजेक्ट था, हमने 8 लाख में करके दिया, एस्टिमेटेड कॉस्ट था। और ये एयरफोर्स स्टेशन थॉइस है। तो बिल्कुल जो ग्राउंड वाटर की थ्योरीज थी, हमने जितनी किताबों में पढ़ते थे कुछ और पढ़ते थे ये सब, और हमने ये सारी तब तक बदल दी। फिर कारगिल की लड़ाई हो गई। जब कारगिल की लड़ाई हुई, फिर ये उस टाइम जो अपने अब्दुल कलाम जी थे, जो बाद में प्रेसिडेंट बने, वो चीफ एडवाइजर थे। तो उन्होंने क्या किया, एक हमने वो आए ये, तो उनको पता लगा कि ऐसे हम कर रहे हैं। तो दे वांटेड कि हम डीआरडीओ के साथ काम करें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और वहीं पे हम क्यों ना इनको एग्रीकल्चर फील्ड्स वहाँ पे थी प्रतापपुर में, हम वहीं पे इनको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करें, और जो छोटी मोटी चीज़ें इनकी रिक्वायरमेंट वहीं पे पूरी करें। तो उनके जो साइंटिस्ट थे उस टाइम, डॉक्टर पांडे बोलते हैं, हमने कोशिश की थी यहाँ से शौक से पानी ले आने के लिए, लेकिन पहली बारी में वो फैसिलिटीज नहीं आ गई कि सारी वो पाइप से भर गई। मैंने कहा विल डू दिस प्रोजेक्ट। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे हमने ये जैसे यहाँ से पानी उठा रहे थे, तो ये पूरी पाइपलाइन इन्होंने बिछाई हुई थी उसको ले जाने के लिए, पर ये पहली बारी में फ्लॉप शो हो गया, क्योंकि सीट सारी चली गई इसमें। अब फिर हमने यहाँ पे ड्रिल किया और पानी निकल गया, काफ़ी पानी निकल गया। और इससे इनकी पहली बार जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 50 टाइम्स इंक्रीज हो गई थी फर्स्ट ईयर में। दैट इज द पावर ऑफ ग्राउंड वाटर। मतलब यूनाइटेड नेशन इस बार सेलिब्रेट भी कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का ईयर है। दिस इज मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, बेसिकली दिस इज द थीम ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो आई कुड हैव, मतलब अगर ये सारी स्टोरी देखूंगा, मैं लिख रहा हूँ किताब, तो इसमें ये सारी की सारी हर जगह जाके तुम इस इनविजिबल रिसोर्स, चंडीगढ़ की भी जो आपकी वाटर है वो बाहर से भी ला रहे हैं, पर हम इससे यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं इसकी प्रॉब्लम। तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, और हर एक को 24/7 पानी मिल सकता है।
और वो कौन बताएगा? अगर आपके जियोलॉजिस्ट सक्षम नहीं होंगे, उनको खुद ही नॉलेज नहीं होगी, तो कोई बताएगा ही नहीं। तो इंजीनियर्स बोलेंगे वहाँ से 70 किलोमीटर से कसौली से लेके आओ पानी। तो ये चीज़ें क्या है कि ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक जियोलॉजिस्ट के नाते आपको पूरी ये, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है और सब सोच के इम्प्लीमेंट करनी है कि सिर्फ आपका काम यही नहीं है, आपका काम है कॉस्टिंग कम करना। इंजीनियर बोल देगा प्रोजेक्ट बना के लाओ, उसको आधा कॉस्ट करके दे दो, बोलो ये सब चीज़ें छोड़ दो, पाइपें सारी है यहीं पे आ जाएगा पानी और यहाँ पे तुम ये करो, ये पानी की बात करो, बाकी भी सब चीज़ों में तुम ऐसे ही बिहेव करोगे, ठीक है। अब ये सियाचिन का है, तो मेरा दिल था वहाँ पे सियाचिन में जाने का। वो ये मेजर भोपड़ा था 4 इंजीनियर्स के, ये कहता है यार तेरा दिल तो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यू हैव टू बी अ डिफेंस मिनिस्टर और इन द आर्मी टू बी इन सियाचिन। अब तो खुला हो गया एरिया। लेकिन मैंने कहा यार, तो फिर एक दिन मेरे को ये मिला, कहता है यार वहाँ से ना मेरी ना पाइपलाइन जो हमने चंदन नाला से ली थी इसके लिए, वो पाइपलाइन बह गई है, फ्लड आया, तो हमें निकाल सकता पानी। मैं कहा यार क्यों नहीं। अगले दिन इसने बढ़ाया, मेरे को ले गया। हम सवेरे 5 बजे चले थे और मेरे ख्याल से 8-9 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए थे सियाचिन में। रेक्की की मैंने कहा 100% निकाल देंगे, यहाँ पे कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था यहाँ पे। पर ये था कि मुश्किल यहाँ पे पानी निकालना नहीं था, मुश्किल था यहाँ पे -38 या 48 माइनस टेम्परेचर जाता है यहाँ पे, तब मेरा ये स्कीम चलेगी कि नहीं। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि नहीं, वी विल डू इट, बट वी विल डू इट इन द मंथ ऑफ दिसंबर। कहते वहाँ पे चलेगी कैसे, मैं कहा यही तो चलाना है। और हमने ये फिर इसको -28 डिग्रीज में चालू किया था, आज तक ये चल रहे हैं सारे बोर्डर्स। और जब मैं यहाँ पे आया था तो ये ऐसे ये बर्फ के सिलियाँ यहाँ पे लेके आते थे, उसको लाओ पतीले में डालो, फिर स्टोव जलाओ, फिर वो पानी गर्म होएगा, पिघलेगा बर्फ, फिर तुम पानी पियोगे। मैं कहा ये लास्ट टाइम यू आर गोइंग टू हैव वाटर लाइक दिस। उसके बाद आज तक ये दे आर हैविंग वाटर फ्रॉम द बोरवेल्स टू द पाइप्स। अब कारगिल में भी ऐसी सिचुएशन थी, जब कारगिल की लड़ाई, ये सब कारगिल के दौरान हो रहा था, क्योंकि इनका ऑपरेशन इतना ज़्यादा आ गया था कि अब इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। हर आर्मी की अब बॉर्डर उस टाइम क्या था, थ्रस्ट हो गया पाकिस्तान की तरफ। तो हमने क्या किया, ये फिर कारगिल की लड़ाई, ये तोलालिंग हिल, टाइगर हिल और यहाँ पे भीमगढ़ जगह है, वहाँ पे निकाल के उस टाइम सारों को ये -40 डिग्रीज में यहाँ पे चलाया। और ये विक्रम बत्रा, जैसे दिल मांगे मोर, मैं ये बोलता था कौन सी पीक है, ये दिल मांगे मोर, जस्ट नेम द पीक एंड वी विल गिव यू वाटर। तो मतलब ये हमारे डीएवी कॉलेज से था, मैं भी डीएवी कॉलेज से पढ़ा था, तो ये इसका भाई मिलता रहता है अभी। मतलब ये जज्बा था इनका। और ऐसे करते करते कई जगह हमने ड्रिल किया, तो हमारा नाम गिनीज बुक में आ गया। पर ये 2003 या 4 की बात है। आगे कहानी शुरू करूँ या मैं तो उसके बाद क्या हुआ, कोई क्वेश्चन है तो सर से पूछ लेना है ना, कभी भी जो भी तुम्हारा दिल करता है। फिर हमारा वो प्रोजेक्ट, फिर जब पाकिस्तान का यहाँ पे थ्रस्ट कम हो गया, फिर चाइना के साथ शुरू हो गया पंगा। तो चाइना जब भी आपकी आर्मी मूव करती है, सबसे ज़्यादा कहती है पानी। तो मैं वहाँ पे ऐसा बन गया था कि पानी कहीं पे भी है तो आ गया, है ना। तो ये रेजिंगला मेरे लिए कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेरे को बड़े इंटरेस्टिंग से लगे। तो ये रेजिंगला 1962 की लड़ाई हुई थी यहाँ पे, जिसके बाद हमने मानसरोवर और कैलाश, अक्सई चीन भारत ने चाइना को दे दिया था। उसके बाद जीते हम लड़ाई थे, ग्राउंड में हम जीते थे, एयरफील्ड हमारी बन चुकी थी त्रिशूल में, लेकिन इन्होंने प्लेन नहीं भेजा यहाँ से दिल्ली से। अगर वो प्लेन एक भेज देते, जैसे इस बार हमारा जब गलवान के साथ फेस ऑफ हुआ, तो इन्होंने कहा कुछ नहीं है। जब कर्नल संतोष थे, जब मैं उनकी सारी मेरी टीम के साथ मैं मिला उन सारे यूनिट्स के साथ जहाँ जहाँ काम किया 2020 में, तो वो एक जज्बा था यार, एक प्रधानमंत्री आपके साथ खड़ा हुआ है और एक पता है कि आपको पता ही नहीं है कि वो बंदे तो मर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन आपको प्रधानमंत्री वहाँ पे एक प्लेन नहीं भेज रहा आपके लिए सपोर्ट के लिए। वो जूते में पता नहीं कैसे कैसे बेचारे लड़ रहे थे वहाँ पे। और यहाँ पे क्या था, पूरी फौज, वो प्रधानमंत्री खुद आके खड़ा हो गया वहाँ पे कि 1 इंच नहीं देना, हमने जो दे दिया, गलवान में हमने कुछ नहीं देना, आप जाइए वहाँ पे। और अब क्या है कि वो सारी की सारी अब डे में आपको आर्मी नजर आएगी, आपको गलवान की वैली में, जहाँ पे कोई, अब मैं चलो उसके बारे में थोड़ा सा बाद में कहूँगा। पर ये रेजिंगला था, तो यहाँ पे भी हमने निकाला पानी। और त्रिशूल में भी आर्टिफिशियल कंडीशन आ गई, फिर ये उससे पहले वाले से अभाव हो गया, तो यहाँ पे भी हमारा लिंका में नाम आ गया। पैंगोंग में फिर अब ये धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पैंगोंग के बारे में आपने बहुत सुना होगा,
यहाँ पे 3 इडियट्स की भी शूटिंग हुई थी, उसके बाद बहुत मशहूर हो गया। करीना स्कूटर चलाती है, यहाँ पे भी जब बंदे जाते हैं सारे साइकिल करते हैं, पर एज अ जियोलॉजिस्ट जब तुम जाओ वहाँ पे तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग तुम्हारे लिए आएगा कि ये लेक नहीं था पहले। जब हमने इसको स्टडी किया, इट वॉज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक, और फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण कैसे ये, तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर अब इंटरेस्ट हमारा कोस्टल से पानी में आ गया, पानी से क्लाइमेट पे आ गया, क्योंकि हमारे पास एविडेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे थे और इधर से मैनमेड ग्लोबल वार्मिंग बोली जा रहे थे ये सारे। तो अब क्या था कि जब मैं उधर नॉर्वे में गया, हम IGC में, तो उधर बोलते तो वो डेनमार्क की जो क्लाइमेट मिनिस्टर आई थी पहली बार बोलते, तो कि तुम जियोलॉजिस्ट हो, तुम मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात करो, तो ये तो तुम्हारा ही पता है कि ग्लोबल वार्मिंग है और ग्लोबल कूलिंग है, ये नेचुरल प्रोसेस है, और इसका पर हम कह रहे हैं कि मैन का क्या है और हमारे को क्या एक्शन लेना है एज अ गवर्नमेंट। वी कांट सिट देयर एंड जस्ट रिलैक्स। अब गवर्नमेंट अब क्या है कि तुम बोलो कि यहाँ पे जैसे सपोज करो कोई बंदा आ जाए, यहाँ पे ये हॉस्पिटल है और यहाँ पे डॉक्टर नहीं है कोई, पर यहाँ पे पेशेंट आ जाए और वो बेचारा काफ़ी इंजर्ड है और सब बोल रहे हैं कि नहीं जब मैं भी डॉक्टर ही कर लेता हूँ थोड़ी सी, वो बंदा बचेगा कि मरेगा अगर डॉक्टर साहब थोड़े से लेट हो गए? मर जाएगा। क्लाइमेट का भी यही हाल है। क्लाइमेट चेंज के बारे में सिर्फ एक लाइन के अलावा, क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता। इतना हुआ क्रिएट कर रखा है इसके बारे में, चलो कभी फिर मैं लेक्चर दूंगा उसके बारे में अगर आएंगे तो ये एक पैंगोंग एक डेड रिवर है। ये क्या है, अब रिवर था, ये लेक बन चुका है, और वो कैसे हुआ, कैसे बना? फिर इंडिया टुडे ने आर्टिकल निकाला, तो इसमें हमारे को वो छापते रहते थे, तो ये उसका है। फिर कुछ अवार्ड वगैरह मिले, फिर असेंबली को हिमाचल में पॉलिसी बनाई, तो उसमें वाटर मैनेजमेंट में रखा था। क्या है, तुम अपना क्रेडिबिलिटी प्रूव करो, एक जियोलॉजिस्ट बनो, तो तुम्हारी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, क्यों इतना शेयर करना चाह रहा हूँ एक्सपीरियंस, ताकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आए। अभी मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि जियोलॉजी क्या होती है जब आप फील्ड में जाओगे, और जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाओगे, थ्योरेटिकल करनी और बात होती है कि आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में लेक्चर बन गया, अपना पेपर किया, फिर थोड़े दिन बाद उसको रिवाइज किया या करा या नहीं करा, उसका कोई इम्प्लीकेशन सोसाइटी में हो रहा है या नहीं हो रहा, वो एक अलग एक्सपेक्ट आ जाता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल जियोलॉजी करोगे, या ऑयल वेल में जा रहे हो आप, या वाटर इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे पानी निकाल के दे। अगर आप लैंडस्लाइड में चले गए तो ठीक है, लैंडस्लाइड को रोक, मेरे को तेरे पेपर से कोई मतलब नहीं है। आपके पेपर वो चलना चाहिए एकेडमिकली, मैं भी लिखता हूँ पेपर्स वगैरह, लेकिन वो एकेडमिकली चलना चाहिए। लेकिन वहाँ पे लोगों को, आपको एक जियोलॉजी चाहिए, उनको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए। यहाँ पे अगर कहीं पे आप चले गए फाउंडेशन के लिए कि आप बताओगे मेरे को कि यहाँ पे मैं डैम बना रहा हूँ, तो वो ये नहीं पूछेंगे कि आपको पेपर लिखना है, क्या करना है, आपने क्या नहीं करना है, आपको आपका एकेडमिक इंटरेस्ट है उसको जागृत रखना है आपने, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ। तो ये है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ जियोलॉजी। एक रोड की फाउंडेशन, एक डैम की फाउंडेशन, एक टनलिंग, आप ये सोचो कितनी जगह में आपकी इम्पोर्टेंस है। ये तो मैं तो थोड़ा सा ही, क्योंकि मैं जिस डायरेक्ट में काम किया मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जो हमारे दोस्त काम कर रहे हैं, जैसे अब नापता झांसी का इतनी बड़ी बड़ी टनल्स बनी है 26 किलोमीटर्स की, तो वहाँ पे उन्होंने काम किया रात है, अभी भी वो काम कर रहे हैं वहाँ, और टनल्स बना रहे हैं वहाँ। तो क्या है, आपकी अहमियत बहुत है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं यही कहूँगा, जैसे हम 20 में से 5-6 रह गए थे MSc में, फिर वो मैं और ये आशु ही रह गए जो कर रहे हैं, लेकिन आप अपना जज्बा जियोलॉजी के प्रति जागरूक रखें, तो आपको बहुत मजा आएगा इसमें, क्योंकि एक तो प्लेस बहुत कम है, और अगर आपको पता लग गया, और जैसे मेरे को पता है पानी कहाँ पे, मेरे को कहीं पे भी खड़ा कर दो, 3 दिन में अंदर वहीं पे पानी निकाल के देता हूँ, सिंपल, और लोगों को पता भी है। और चार्जेस क्या होते हैं, फिर चार्जेस तुम्हारे कोई, मतलब मे बी आई एम द हाईएस्ट पेड जियोलॉजिस्ट इन द कंट्री, अगर मेरी कंसल्टेशन फीस लेनी नहीं पता है उनको, कि फिर भी मेरी कंसल्टेशन फीस देके भी उनका मैं 1 करोड़ रुपया बचा रहा हूँ। अच्छा ये तो चलो, अब ये क्या है फिर, अच्छा ये फिर हम गए थे जब IGC, जब अपनी वो नॉर्वे में, तो यहाँ पे ये जो प्लान अभी 2020 का हुआ था नहीं हो पाई यहाँ पे, नहीं तो वो एक इवेंट होता है, ये हर 4 साल बाद अगर कोई मौका मिले तो जरूर जाना चाहिए। इसमें पता लगता है जियोलॉजी क्या है, ये ओलंपिक गेम है जियोलॉजी की, हमारे यहाँ पे होनी चाहिए, इन्होंने पता नहीं क्या किया। नहीं तो आप लोगों को जो एक्सपोजर यहाँ पे मिलता है वो अद्भुत एक्सपोजर है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये अपने एक काले साहब भी हैं, वो मुकेश साहब भी हैं यहाँ पे, जो DSIT के हैं, जो डायरेक्टर वाडिया के भी हैं यहाँ पे, और NGRA के काफ़ी लोग हैं। अच्छा फिर मेरा इंटरेस्ट क्या हुआ, जब हम ये कर रहे थे
तो लद्दाख में क्या है कि एक तत्तापानी एक चुमाथांग जगह है और एक पुगा जगह है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अगर आपने पार्टीशन ये जो गीजर कंडीशन देखनी है यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे पुगा में जाना पड़ेगा। और हम मणिकरण में जाते थे, पहले मणिकरण में वैसे जाते थे, अब एज अ जियोलॉजिस्ट जब आप जाओगे तो आपको अद्भुत एक फीलिंग आएगी वहाँ पे कि जो पहले गुरु नानक देव जी थे वो पहले बंदे थे इंडिया के जिन्होंने जियोथर्मल एनर्जी को यूटिलाइजेशन की और ये बताया कि इससे आप खाना भी बना सकते हो। आज तक वहाँ पे तो एज ए गुरु नानक जी को ये देखते हैं सिर्फ एक रिलीजियस पर्सन की तरफ, जैसे हम राम को एक सिर्फ भगवान के रूप में देखते हैं, पर राम को देखें तो राम को दूसरा एस्पेक्ट देखो तो वो वॉरियर था, वो तो लड़ता रहता था हर एक से, कभी यहाँ पे लड़ लिए, कभी वहाँ पे लड़ लिए, कभी यहाँ पे लड़ लिए, उनकी पूरी जिंदगी लड़ाई की है। हम कहते हैं कि हमारा देश ने कभी आक्रमण नहीं किया, मैं कहता हूँ कि राम के टाइम में हमारा कभी ऐसा था ही नहीं कि हमने आक्रमण ना किया हो किसी पे। हम तो कहते थे तू ये घोड़ा मेरा यहाँ पे आ गया, अब तो तेरे से भी लड़ना पड़ेगा। तो मतलब इस तरह का हमारा वैभव था। अब उल्टी सीधी हमारे को शिक्षाएं दे रही हैं कि हमने लड़ना नहीं, पाकिस्तान हमारे पास क्या क्या करता रहता है, चाइना क्या करते रहता है, और हम बैठे हैं यहाँ पे। कैलाश हमारा, कैलाश और मानसरोवर हमारे नाम है। कैलाश शिव के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कावड़ियाँ इधर की यात्राएं करते रहेंगे, मानसरोवर से लाओ भाई पानी। तो इस तरह की भावना जब अच्छा वो दूसरा एस्पेक्ट है मैं कहीं चला तो अग्नि योद्धगारा का फिर मैंने ये कंसेप्ट डेवलप किया था, अग्नि योद्धगारा का। और ये महेश और जब ये पीडीपीयू में था तो हमारा इंटरेक्शन इनके साथ पहले हुआ था। तो वैसे ये पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर ये जियोथर्मल का एक्सपर्ट है, इसको रिजर्वॉयर्स की मॉडलिंग के बारे में बहुत नॉलेज है। और जब ये यहाँ पे ज्वाइन किया था तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि ये जियोथर्मल यहाँ पे डेवलप करेगा। तो इसने मेरे को वहाँ पे बुलाया था अपना अहमदाबाद में, गांधीनगर में। तो ये तब मैं ये कंसेप्ट पे काम कर रहा था। तो मैं आइसलैंड वगैरह में हमने एक टीम बना रही थी आइसलैंड की, जो अभी पुगा में जो हुआ है आपने सुना होगा, ड्रिलिंग हो रही है जियोथर्मल की। तो जितनी भी वो टीम इन्वॉल्व थी वो सब हमारी टीम है, बजरनी, और यहाँ पे आए थे वो डिपार्टमेंट। इधर उनका लेक्चर मैंने करवाया था, अर्नी, बजरनी और ये सारे बंदे यहाँ पे। तो ये जियोथर्मल का जो कंसेप्ट था, एनर्जी फ्रॉम लावा, इसको हमने जो प्रोजेक्ट था इंडिया, नॉर्वे, आइसलैंड का जो हमने वो कंसोर्टियम बनाया था, उसका नाम हमने दिया था अग्नि योद्धगार इग्नोर, मतलब अग्नि योद्धगार लावा एनर्जी और इंडिया नॉर्वे जॉइंट वेंचर। तो वो एक, तो तुम अगर एक्सर्ट करो अपनी बात तो दुनिया भी सुनती है। तो मैंने वो बोलते थे ये क्या अग्नि योद्धगार, व्हाट इज दिस, व्हाई डोंट यू कॉल इट सम सिंपल जियोथर्मल प्रोजेक्ट। मैं कहा दिस इज एडवांस फॉर्म ऑफ जियोथर्मल। व्हाट इज एडवांस फॉर्म ऑफ जियोथर्मल, यू नो। फिर क्या कहानियां सुनानी है तुमने, जियोलॉजी के पास कहानियां होनी चाहिए, मजे हैं। This is like vertical tunneling. This is not ordinary geothermal well. This is like vertical tunneling and blah 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 blah. और इससे करोगे तो तुम अपनी सीवरेज इसमें डालो और सीवरेज का पानी डालो और स्टीम जनरेट करो, और you can have अग्नि योद्धगार spots everywhere throughout the world to solve your energy and water problems and also sewerage problems. हैं? Yes, we will keep this in mind. तो मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा ये तो फिर ये हमारे से कीनिया ने बहुत बाद में डेवलप करना शुरू किया था। हम पढ़ते थे 10,000 मेगावाट पोटेंशियल है जियोथर्मल का इंडिया में, पर अभी तक 1 किलोवाट भी हम एक बल्ब नहीं चला पाए हैं जियोथर्मल का। अब शायद हम मेरे ख्याल से कर रहे हैं काम, तो मेरे ख्याल से बाय नेक्स्ट ईयर एक आधा बल्ब हम जलाएंगे। उसमें तो दिस इज व्हाट कीनिया हैज डन। कीनिया की इकोनॉमी सारी बदल गई है, क्योंकि क्या होता है कि आपकी, अब देखो जियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या है, तेल सारा हमारा कहाँ से आ रहा है, ज़्यादा गल्फ से आ रहा है। अब हम रशिया से ले रहे हैं, पहले उधर से लेते थे। ये खाने कांग्रेस के टाइम में हमारा यहीं से था, वो तो हम ऐसे ही करते रहते थे। अब इसने नेगोशिएट किया, एक चीज़ हम बोलते हैं कि ये नेगोशिएट करता है और देश के बारे में काम करता है कि मतलब कम हो रहा है तो मेरे को यहाँ से लेना, तुम भाड़ में जो लड़ो, तुम जो मर्जी करो, मेरे को तेल दे बस। अगर वहाँ पे अब क्या हो रहा है हमारा जियोलॉजिस्ट का क्या काम है, एक तुम में से कोई पेट्रोलियम में जाओ तो कीड़े बन जाओ कि हमारे ऑयल यहाँ पे ढूंढना है। जियोथर्मल वेल्स हमने यहाँ पे ढूंढने हैं, पोटेंशियल बहुत है। तो ऐसे ऐसे करके जब तुम जाओगे तो एक मकसद लेके जाओ, जियोलॉजिस्ट बनना है। मैंने किस में जियोलॉजिस्ट बनना है, सिर्फ ऐसे किसी भी एक एस्पेक्ट को चुन लो और तुम मजे करोगे जिंदगी में। तो अब ये था, अब इसमें अब ये किया तो हमने ये, अब इसमें क्या होता है कि जियोथर्मल सिर्फ एक प्रोडक्शन नहीं है, हीट एक्सचेंजर भी है। तो उसमें तुम एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स भी बना सकते हो, उसमें भी थोड़ा बहुत काम है, बहुत डिमांड आने वाली है। इंडिया इज गोइंग टू बी, और उसमें जियोलॉजिस्ट जो
हीट एक्सचेंज के बारे में समझ सके कुछ, उसकी बहुत डिमांड हो जाएगी, बहुत पैसा कमाओगे, भूल जाओगे नौकरियां, MBA इंजीनियरिंग जितने कमाते थे, ठीक है ना, इतना पैसा है इसमें। फ्यूचर सिटीज ऐसे बनी है, जो भी सिटी जो थर्मल पे बेस्ड नहीं होगी वो सारी फ्यूचर सिटीज ही नहीं मानी जाएंगी। अब जैसे ये वाला प्रोजेक्ट था, इसमें मेरे को समझ नहीं आया, इन्होंने जियो थर्मल क्यों नहीं डाला, एक्सपर्ट बैठे हुए थे, लेकिन थोड़ा सा हमारे को लेट पता लगा। लेकिन इसमें भी नहीं तो हमने पूरा का पूरा ये जो पार्लियामेंट बन रहा है इसमें हमारे को यही करना है, क्योंकि आप जियो थर्मल के बगैर आगे नहीं जी सकते। अभी 7.4 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स इसमें होनी है जियो थर्मल में 2030 तक, और इंडिया का पोटेंशियल जैसे अवेलेबल है 10,000 मेगावाट है। अभी तक हम कुछ नहीं करें क्योंकि जियोलॉजिस्ट निकम्मे हैं, करना नहीं चाहता, ठीक है। अब ये पुगा का है, ये तो अभी का है, उधर हम काट रहे थे और यहाँ पे हम गए थे, उसके बाद ब्लास्ट हो गया वहाँ पे 30 मीटर पे। तो इल प्लानिंग और ये मतलब इंजीनियर डोमिनेटेड जब भी कोई रहता है, कि सैम्पलिंग नहीं इकट्ठे कर रहे थे, मैं सब रहा वहाँ पे, और मैंने पहले बता दिया था उनको मैसेज करके, मैंने कहा ये तुम्हारा गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो क्या कर रहे हो, और ये ब्लास्ट हो गया इनका। और ये पुगा का जो आर्टिफिशियल कंडीशन है। अब ऐसे ही है, पुगा हमारी घर में भी फेल हो गया था, क्योंकि वहाँ पे भी पहले लाइट कोशिश की थी चलाने की। अब कोल डैम है यहाँ पे, तत्ता पानी के पास है, शिमला के पास, अब ये सबमर्ज हो गए हैं सारे हाइडल पावर में। तो जियो थर्मल को बड़ा ये वाली फोटोग्राफ है वो, ये आपके मेरे साथ ये इन्वाइट किया था, मैंने काफ़ी अच्छा रहा था ये, और मेरे को लगा था कि अब ये कुछ अच्छी बिगनिंग होने वाली है, पर somehow he left that project, that was a very ambitious project in गुजरात। उन्होंने फिर परस्यू तो किया, मेरे ख्याल 15-20 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो, और फिर ये भाई साहब यहाँ पे आए। he is a gem of a person यार, कि ये मतलब अगर करे उसमें तो करे। फिर क्या था 2016 में ये सब चल रहा था, फिर मेरे को वर्ल्ड फ्यूचर अबू धाबी में होती थी, तो वहाँ पे भी बुलाया, क्योंकि वो अग्नि वगैरह कॉन्सेप्ट उनको बड़ा अजीब सा लगा, तो उसके लिए इन्होंने ये पूरे का पूरा स्टॉल देते थे हमारे को, और ये इंटरनेशनल जो थर्मल के प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये भी हमारा इसको कॉन्सेप्ट को बड़ा इन्होंने सराहा। और गार्डियन ने इसको टॉप 10 इनोवेशन के लिए अपने रिसर्च की टॉप 10 इनोवेशन वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, उसमें गूगल में तो ये पॉइंट ये, और फिर ये चलता रहा सारा प्रोजेक्ट। तो पर दिस इज द फ्यूचर ऑफ जियो थर्मल, पूरा दुनिया इसके पर। अभी यूरोप को ऑयल गैस नहीं दे रहा रशिया, तो वो भी वापस क्या करे, कुछ और सोर्सेज नहीं, उनके पास ऑयल नहीं है, तो वो जियो थर्मल के कुछ ही किसी भी रूप में उसको डेवलप करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर हमने इधर गर्म पानी में निकाला, इसमें सियाचिन में भी मैंने ठंडा पानी तो निकाल दिया था 2003 में, लेकिन अब मेरे दिमाग में ये था कि वहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, कि वो जैसे पानी वो बर्फ़ पिघला के पीते थे, अभी भी वो ये करते रहते हैं, कम से कम गर्म पानी वहाँ पे मिल जाए, तो हम इनको कम से कम रोज़ नहा तो सकते हैं। मैं जब लद्दाख में जाता हूँ तो मेरे ख्याल से कई बार, मतलब लेह में तो फिर भी नहा लेते हैं, लेकिन अगर उसके बियॉन्ड चले गए हम, तो बस फिर हम नहा धोना सब बंद हो जाता है, क्योंकि वो सब वो है। अच्छा, इसमें कर रहे थे तो अभी ये डिस्कवरी चैनल में मेरा आया, एक रोज में मैं लेह में था, उस टाइम गलवान की लड़ाई चल रही थी, और मेरे को एकदम कॉल आई कि दे वांटेड टू डू सम सीरियल ऑन ये राम सेतु। पता नहीं देखा होगा आपने किसी ने? देखा सर, राम देखा सेतु पिक्चर देखी उन्होंने। नहीं सर, आपका भी देखा एपिसोड वाला जो नेशनल ज्योग्राफिक पे देखा है, ये नहीं डिस्कवरी वाला, डिस्कवरी प्लस वन। तो इसमें क्या था कि बेसिकली मेरा कोई रोल नहीं था इसमें, तो ये रामायण के 3 एपिसोड बना रहे थे, उसमें 2 में मेरे को इन्होंने, फिर मैं मिसफिट था, क्योंकि पहले मेरे ख्याल ये कोई और जियोलॉजिस्ट को लेके जा रहे थे, पर वो सारे बैकआउट कर गए। अब मेरे को समझ नहीं आया उस टाइम क्यों बैकआउट करके, पर जब मैं राम सेतु में पहुंचा वहाँ पे धनुषकोडी में, तो मेरे को समझ में आया, अगर वहाँ पे मैं बोलूँगा राम सेतु नहीं है तो बीजेपी मार जाएगी, अगर मैं बोलूँगा है तो जियोलॉजिकल कम्युनिटी मार देगी। कैसे बोल दिया बेटा ने, क्या रीजन है तेरे पास, है ना? तो तुमने राम सेतु बनाना था, है कि नहीं है? और एक नासा की तुमने अगर देखोगे 1.5 मिनट की क्लिप है वो, कि वो बता रहे हैं कि राम सेतु है जी, उसमें ये स्टोन मिले, कोई 3-4 जियोलॉजिस्ट उसमें आर्कियोलॉजिस्ट वो बता रहे हैं। तो
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जब मैं भी गया वहाँ पे तो मैंने कहा भागो यहाँ से यार, काम फंसा दिया मेरे को। पर ये था, मैंने बोला था उनको 10-15 दिन मेरे को चाहिए पहले, अगर मेरे को समझ में आ गया तो ही मैं बोलूँगा। जो मेरे को समझ में आएगा, आई कांट रीड अ स्क्रिप्टेड बुक। मैं जो तुमने लिखा है मैं वो पढ़ के नहीं बोलूँगा। तो कहते हैं, मैंने फिर बोला कि जो वहाँ पे गए तो एक तरफ, अब यहाँ पे वो श्रीलंका टेलीस्कोप लगाया, वो देखो श्रीलंका दिख रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे तुम, और बीच में राम सेतु बनाना है, राम ने क्रॉस करना है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। तो वहाँ पे क्या था, अगर आप देख रहे हो उसके बाद उसको, तो हाउ साइंटिफिकली इजी इट वाज कि यस देयर वाज राम सेतु, और उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल के करंट्स के द्वारा। और वहीं पे वो जैसे सैंड ड्यून्स होते हैं, तो मेरी सैंड ड्यून्स का कंसेप्ट मैंने किया, तो वो इतना सिंपल था। तो ये बड़ा अच्छा था। और अब ये वहाँ पे ब्रिज बना रहे हैं, तो ये पूरे उस रीजन की, उस रीजन की तो नहीं, मतलब पूरे उसमें वो कर सकता है, अभी भी बन सकता है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब जैसे वो क्लाइमेट के बारे में मैं थोड़ा सा खत्म करता हूँ इसको, अब हो गया होगा काफ़ी टाइम। तो ये क्लाइमेट चेंज के बारे में जैसे बड़ा हुआ, मैं बताया कि पता नहीं है, तो ग्लोबल वार्मिंग इज द बेस्ट पार्ट टू बी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, हमसे यही याद है। अब कौन लोग बोलना चाहता है इसके बारे में कुछ? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? ग्लोबल वार्मिंग इज द बेस्ट पार्ट टू बी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। गलत बोल रहे हो, हैं? गलत बोल रहे हो सर, गर्मी हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? अब रात को तो बोलेगा यार अंधेरा बहुत हो रहा है, ये तो गलत बोल रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग इज द बेस्ट पार्ट। रात की चांदनी एंजॉय कर लो। अब उसमें क्या होता है कि देखो, जब तुम ग्लोबल कूलिंग, अभी इसमें मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसमें क्या होता है। अब इसमें मैंने टेडेक्स टॉक दी हुई है 2000 मेरे ख्याल 11 या 12 में उन्होंने दिया हुआ है इसमें। तो इसमें सारे एविडेंसेस हैं, सिंपल एविडेंसेस हैं, जियोलॉजी के एविडेंसेस हैं। तो उसमें क्या है कि ये देख, जैसे सिंपल सा है। अब ये बहुत बार हमने देखा इसको वहाँ पे ले में, पर फिर हमने देखा ये ग्लेशियर का एक्सटिंक्ट है, और ये 1006 डेट भी हमने कर दी इसकी, अप्रॉक्सीमेटली इतने टाइम में हुआ होगा। तो तब इंडस्ट्रियलाइजेशन ही थी, ग्लोबल वार्मिंग उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। फिर हमने 3200 किलोमीटर का ग्लेशियर था, उसको भी रिसीड करता किया और दिखाया। 74.5 किलोमीटर का सियाचिन रिसीड किया, 23.6 किलोमीटर के खारदून ग्लेशियर का रिसीड बताया। तो ये सारे के सारे रिसीड किए और हमने डॉक्यूमेंट किए सारे। और उसके बाद अब ये क्या है, ग्लेशियर्स क्या कह रहे हैं हम, तो ग्लेशियर्स आर एक्सटिंक्ट इन हिमालयाज और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब तो मेरे को जब से मैं गलवान गया हूँ काराकोरम रेंज में, तो वहाँ पे तो ग्लेशियर है ही नहीं। मैं सोचता था शायद वहाँ पे कुछ बचे हुए हैं, पर वहाँ पे भी बहुत ब्रिंक सिचुएशन है। अब ये और ये सारे के सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले हो चुके हैं। अब ये जैसे सियाचिन है 78.15 किलोमीटर लास्ट ग्लेशियर स्टेशन से हमने किया है। और लेक जितने भी है वो सारे श्रिंक कर रहे हैं, चाहे वो सोमरारी है, चाहे वो पैंगोंग है, और ये सोमरारी वाला है। तो इसमें हमने जो किया है कि 1 मीटर, ये 8 मीटर ऑफ श्रिंकेज हमने नोट किया है इसमें। और ये पेलियोलेक्स है, पेलियोलेक्स पे बहुत काम किया है। अभी आ रहे हैं हमारा अच्छे पेपर आएंगे, तो उसमें मतलब पूरे 10,000 साल की 11,000 या 12,000 साल की हम पूरा वो निकाल रहे हैं कि कितना कैसे कैसे क्लाइमेट बिहेव किया है। ये पैंगोंग लेक नहीं था, ये मैं पहले बताया, एंड इट्स फील्ड ड्यू टू वार्मिंग। जितना भी ग्लेशियर था वो कम हो गया। तो जो हमारा वाला जो कर्व है, आप मिलेंकोविक साइकिल देखोगे तो वो हॉकी स्टिक कर्व होता है, बढ़ता रहेगा टेम्परेचर और आपको भी बढ़ते रहेगा जैसे आप पढ़ रहे हो। तो जो मेरा वाला कर्व है, इसको मैं आर्या-सी साइकिल बोलता हूँ। तो इसमें क्या आइसेज है, वार्मिंग है, वार्मिंग मैक्सिमा है। यहाँ से क्या होगा, वार्मिंग मैक्सिमा चल रहा है, नहीं वार्मिंग चल रही है, यहाँ आके वो वार्मिंग मैक्सिमा बन जाते हैं, और यहाँ पे कूलिंग मैक्सिमा बन जाता है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसमें इसका ये मतलब है कि जब हमने वहाँ पे लद्दाख में थे, तो हमारे को कुछ स्ट्रक्चर ऐसे मिले, पता नहीं उसमें है कि नहीं है। कुछ स्ट्रक्चर्स लद्दाख बैथलिथ में ऐसे मिले। अब बैथलिथ क्या है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। अब उसमें क्या होगा, इरोजन रेट, इसका सारा मतलब था इरोजन से। जब आपके पास पानी आता है तो आपके पास क्या होगा, इरोजन ज़्यादा होगा, और जब आपके पास आइसेज आएगी तो पानी कम आएगा। तो जब आपके पास पानी कम आएगा तो इरोजन कम आएगी, तो आपका इरोजन कम आएगी। पर जब आपके पास पानी ज़्यादा आता रहेगा तो
जितना जितना पानी आता रहेगा उतना उतना इरोजन ज़्यादा होती रहेगी, फिर ये कम होता रहेगा। तो ये वार्मिंग मैक्सिमम हो गया, जिसको आज हम अभी हैं। अब हम कूलिंग की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे कूलिंग है कि धीरे धीरे क्या होएगा, इरोजन कम होनी शुरू हो जाएगी, वाटर बॉडीज फ्रीज होनी शुरू हो जाएंगी, पानी कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी आइस जा जाएगी। ऐसी हमने 10 साइकिल्स ढूंढी में, और वो पूरे सिग्नेचर है उसके, किसके, मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर वार्मिंग, मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर वार्मिंग, मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर वार्मिंग, मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर वार्मिंग, इस तरह। अब हमने क्या किया, जो बेस मॉडल था इसका, जो आइस कोर्स के अंटार्कटिका से, वो हमारी रिसर्च नहीं है, वो हमने बोरो किए। जो सर रेट निकाला उनका जो आप ये कर्व हाँ, बताते वही तो हो, बता किस रहा रेट से हुआ है उस टाइम वही मैं बता रहा हूँ, अभी का रेट और वो अभी वाला बता रेट? रहा हूँ। अच्छा ठीक है ओके। तो उसमें क्या था कि 11,714 साल, अब 3 साल और 4 साल और मान लें तो 11,800 साल, 11,718 साल, वो बेस मानते हैं इसको, आइस कोर की डेटिंग, जब लास्ट ग्लेशिएशन हुई है। उसके बाद हम भी ये माने कि ये लास्ट ग्लेशिएशन में ये रिवर इंडस आज यहाँ पे है, पहले यहाँ पे होगा, और ये ग्लेशियर यहाँ पे बन गया, फिर ये धीरे धीरे मेल्टिंग होती रही, आज ये यहाँ पे आ गया नीचे। पर ये देखा हमने कि ये यूनिफॉर्मिटी है सारी। तो एक जो इसका वो मैं कभी फिर दे दूंगा आपको डेटा, पर ये जैसे ये है, तो ये कितना आ गया, ये और ये यहाँ से आ गया हमारा 1338.6 ईयर्स एक साइकिल। हो सकता है कि ये, अब हमारे पास 10 साइकिल थी, हर 10 साइकिल के बाद एक हाफ साइकिल लगती है, फिर 4 साइकिल आएंगे, तो 4 हाफ साइकिल, 4 अभी हम हाफ साइकिल में, तो इतना भी इम्पैक्ट हो रहा है। ये भी अभी हाफ हो रहा है हमारा। जब फुल होएगा तो वी विल हैव समथिंग सिचुएशन सिमिलर टू द्वारका और सरस्वती का जैसे हाल हुआ है पहले। अभी जैसे मतलब गंगा का भी अभी इंडस देखते हैं, स्क्वीज्ड अप है। पहले जो हम चैनल देख रहे हैं 7-7, 8-8 किलोमीटर के चैनल हैं, अब ये स्क्वीज्ड अप करके मतलब 500 मीटर भी नहीं है कई जगह। अब क्या है कि ये कन्वीनियर कर्व आ गया, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पोल्यूशन। ये यूनिफॉर्मिटी है जो हमने देखी है, थिकनेस जो है जैसे सी कर्व है, इसकी यूनिफॉर्मिटी है सर। मतलब ये नहीं कि ये वाला बड़ा था, ये वाला कम है, तो जब आप इसको नापोगे इसका डिस्टेंस सी का, तो सेम आ रहा है। तो उससे क्या पता लगता है कि आपकी ये यूनिफॉर्मिटी है। उस टाइम भी वॉल्केनिज्म हो रहा होगा, और वॉल्केनिज्म इम्पैक्ट ज़्यादा करता है वार्मिंग के। तो ये जितने छोटे मोटे ये जो पोल्यूशन कर रहे हैं ये नेग्लिजिबल है। जब हम बात करते हैं वॉल्केनिज्म की, तो बात करते हैं हम टेक्टोनिक कोलिजन इंडिया और तिब्बत की। तो वहाँ का जो वॉल्केनिज्म था वो कुछ क्लाइमेट के लिए कुछ कर सकता है, या बहुत मेजर इम्प्लीकेशन हो सकती है उसकी, या डेकन वॉल्केनिज्म था वो कुछ क्लाइमेट चेंज के लिए कर सकता है। बट ये छोटे मोटे हम ये जो गाड़ियाँ गुड़ियाँ चला रहे हैं, ये पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। इससे कोई लेना देना नहीं क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि हमने पहले दिखा दिया कि सारे के सारे ग्लेशियर्स पहले ही खत्म हो चुके हैं हिमालय में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1600 में आया, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो अभी आ रहा है, तो मतलब 1900 में भी 20-30 साल में ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पे आई हैं। तो ये मैं कह रहा था, why we were talking about enjoy global warming, it's the best part to be on this planet Earth, but because if you cannot enjoy warming, अगर तुम वार्मिंग एंजॉय नहीं कर सकता, मेरे साथ मैं टिकट देता हूँ तेरे को, 1 महीना गलवान में बंदों के साथ रह के मैं तेरा अरेंजमेंट करवा दूँगा। दैट इज व्हाट ग्लोबल कूलिंग इज बॉस। ग्लोबल कूलिंग जब आएगी, एक्सटिंक्शन लाती है। ग्लोबल वार्मिंग जब लाती है तो वो एवोल्यूशन लाती है, प्रोलिफरेशन लाती है, डाइवर्सिफिकेशन लाती है। हमारी पॉपुलेशन आज का न्यूज़पेपर पढ़ के आ रहा है 8 बिलियन हो गई है। क्यों हो रही है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है। जब पानी नहीं मिलेगा तो सब मर जाते हैं, फिर आपकी एक्सटिंक्शन शुरू हो जाती है। ग्लोबल एक्सटिंक्शंस भी इसी तरह से चलती हैं। तो आज पीपल लिविंग इन आर्टिक, यहाँ पे कोई रहते ही नहीं है वैसे भी, और जो बेचारे बंदे जाते हैं वो बखला जाते हैं वहाँ पे 6-6 महीने रह के। वो भी हम यहाँ पे रह रहे हैं, वो उस टाइम में वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन ग्लोबल कूलिंग में एंजॉय कर रहे हैं वो उस टाइम, वार्मिंग नहीं एंजॉय कर रहे हैं। और जो वार्मिंग एंजॉय करते हैं जब डार्कनेस आ जाती है 6-6 महीने की। अब नॉर्वे में थे तो हमारे को ये नहीं पता लग जाता रात के 12 बज गए, 1 बज गया, तब भी ऐसा लगता था शाम के 7-8 बजे। तो उसके बाद अब ये लास्ट में अभी हम आजकल ये कर रहे हैं, ये टेथिस फॉसिल म्यूजियम हमने बनाया, ये धर्मपुर में बना रहे हैं। तो कुछ मेरा ख्याल इस साल या अगले साल तक कम्प्लीट हो जाएगा ये। तो इसमें हमने रखा है ये सारे के सारे जितने भी टेथिस के फॉसिल्स हैं, जो मेरी पर्सनल कलेक्शन है सारी, कुछ दोस्तों ने भी दिए हैं, तो सारे हम यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसमें ये जगह है, तो ये हमारे पास कम से कम
10,000 स्क्वायर फीट की एरिया और वो मेरे ख्याल से जो बना रहे हैं छोटा सा उसका 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट वो एरिया है। तो उसमें हम सारा का सारा ये एवोल्यूशन दिखाएं। वी हैव कलेक्शन फ्रॉम स्टोमेटोराइट से, ट्राइलोबाइट से, डायनासोर्स और ये सब एंजियोस्पर्म्स में ज़्यादा थ्रस्ट है हमारा, और मैमल्स में पूरा यहाँ पे हिमालयस का स्टोन टूल्स हैं। तो सारा का सारा जितनी भी है ये मेरा एक सॉर्ट ऑफ ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बच्चे यहाँ पे 4th-5th के आए तो मतलब उनको जैसे हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन उनको जैसे अब किसी स्कूल में मैं जाता था, हमने अभी अब लैब इस्टेब्लिश की वहाँ पे लद्दाख में एक फर्स्ट जियोलॉजिकल लैब बोला उन्होंने, पर जियोग्राफी की लैब। तो उसमें क्या सेडिमेंट्री रॉक, अब आपके पास जब जाते हो तो आपने फिजिक्स की लैब पढ़ ली, बायोलॉजी की लैब पढ़ ली, केमिस्ट्री की लैब पढ़ ली, वो भी कई बार एक्सपेरिमेंट कराते हैं कि नहीं कराते, पर इसमें कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ 3-4 पत्थर रखने हैं और ये बताना कि ये सेडिमेंट्री रॉक ये होता है जी, मेटामॉर्फिक रॉक ये होता है और इग्नियस रॉक ये होता है और उसकी वेरिएशंस ये होती हैं। सैंपल्स रख दो तो आपकी जियोलॉजिकल लैब एस्टैब्लिश हो जाती है। फिर उसमें बता दो कि फॉसिल्स रख दो कि ये भाई ये इवॉल्व हुआ था, ये एक्सटिंक्ट हुआ था, ये इवॉल्व हुआ था, एक्सटिंक्ट हुआ था, एवोल्यूशन एक्सटिंक्शन चलती रहती है। तो छोटी छोटी बातें करके तो अब इसमें हम और फिर एक इसको हम करके फिर इसमें जियोलॉजिज्म का भी एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ से चंडीगढ़ से लेकर कसौली तक का, क्योंकि बड़ा सिंपल सा ट्रैक आ जाता है। तो ये महेश से बात कर रहा था, इन्होंने भी कुछ वो कह रहे थे फ्रंटल फॉल्ट का देखा हुआ है साइड, तो वहाँ से शुरू करेंगे या हो सकता है उधर से करके और कसौली तक का सारी टेक्सिस की एक ही जगह में आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे तो क्या कितने सारे स्कोप्स तो मैंने ही करा दिया, जितना मेरे को बताते हैं मेरे को तो पत्थर है, पत्थर लाओ स्कोप बनाओ। नौकरियों के पीछे मत जाना, सीखने जाना बिल्कुल अच्छी, पर जब तुम्हारे को सीख लो तो सोसाइटी को देने जाना अच्छी तरह से, क्योंकि फिर जब तुम सीख लेते हो ना फिर बंदिशें पता या तो अपनी कंपनी में ला लेना, ठीक है, और कॉन्फिडेंटली काम करना इसमें। अब ये था भी जियो इंडिया ONGC वालों ने हमारे को बुलाया टेक्सिस फॉसिल म्यूजियम के लिए, मैं गलवान में था उस टाइम, तो उनका कॉल आ गया कि ये जो होस्ट कर रहे हैं यहाँ पे जयपुर में, अभी इन्होंने काफ़ी बड़ी जियो इंडिया कॉन्फ्रेंस होती है, आप था भी आप थे ना, आप थे वहाँ पे मिले थे। तो उसमें क्या होता है कि इन्होंने बहुत अच्छा सा स्टॉल दिया हमारे को, पर प्रिपरेशन नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, वहाँ बर्फ़ पड़ गई थी। तो मैं वहाँ था 11 तारीख को, मैं पहुँचा ही वहाँ पे 12 की रात को पहुँचा दिल्ली। फिर मेरे एक दोस्त को रिक्वेस्ट की यहाँ से जरा सैंपल लेके पोस्टर्स लेके वहाँ पहुँचे, पर फिर भी बड़ा अच्छा सा रहा और इन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो ONGC टाइप कर रहे हैं हमारे साथ अब, तो ये भी इनके हम वो भी करेंगे। तो क्या होता है कि तुम पत्थरों से अगर प्यार करोगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत, कभी ये मत सोचना कि नहीं है। जब तुम हार मान लोगे या तुम बोलोगे नहीं मैंने नहीं करना, तब तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज खत्म होंगी। अब जब MSc में हो या फर्स्ट ईयर में हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई भी एक निच देखो अपने अंदर कि यार मेरे को पूरी जियोलॉजी में ना इतनी सी चीज़ जहाँ मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को इससे जैसे पानी से प्यार हो रहा है, पत्थर और पानी के रिलेशन से प्यार हो रहा है, ऑयल से प्यार हो रहा है, मिनरल से प्यार हो रहा है, क्रिस्टल से प्यार हो रहा है, तो उसको अपना एक बेस बनाओ। फिर उसके साथ लोगों के साथ जुड़ो जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं दुनिया में, उनके साथ जुड़ो। जो अच्छे अच्छे लोग प्रैक्टिकली फील्ड में, हमारे एक हरिराज डांडी है, वो करोड़ों का काम कर रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री बना रहा है, वो यहाँ पे वो यहीं का प्रोडक्ट उसने पहले हिमाचल गवर्नमेंट में काम किया, फिर रिलायंस में काम किया, वो अपनी इंडस्ट्री खोल दिया। तो क्या होता है कि तुम जब एक कॉन्फिडेंस लेवल पा लेते हो तो तुम्हारे लिए पैसों की कोई कमी नहीं है, करियर की कोई कमी नहीं है इसमें। तो जैसे मेरे को महेश ने बताया था, कहते हैं कि अब आप इस फेज में हो कि MSc के स्टूडेंट्स हैं तो आपने इनको ये करना है। मैं ये नहीं बोलूँ कि आप यही करो, वो हमेशा हर एक का निच अपना अलग होता है। अब जैसे आशु है बेचारा, इसने डायनासोर्स पे बहुत काम किया है और इसको भी बड़ा शौक था। तो इस तरह से आप अपनी एक निच करो। अब बताया कि वो चूहों पे लगे रहते हैं करने में, तो वो डेडिकेट कर लिया, लेकिन उससे नाम आ जाता है। और तब इनके पास भी कोई स्कॉलरशिप नहीं थी, पर इन्होंने छोड़ी नहीं जॉब, हार्डशिप फेस किए हैं, पेरेंट्स से भी फेस किए हैं। ज़िंदगी हमारी भी इतनी आसान नहीं रही है, हम भी आप लोगों की तरह थे, मिडिल क्लास थे सारे, और ये नहीं कि माओ के पास बहुत पैसे हैं कि वो बांटते रहेंगे हमारे को। 25 रुपये भी हमारे लिए बहुत होते थे, उसमें से मेरे ख्याल से 1100-1200 रुपये उपजा लेते थे, और वो भी राजा की तरह रहते थे। हमारे को लगता था वाह यार, मतलब ये एक फीलिंग है। आपको पैकेजेस की तरफ मत जाओ, ज़िंदगी में सीखने, और ये एक बार मिली है ज़िंदगी, इसको एंजॉय करने के लिए जाओ। तो मैं लास्ट स्लाइड दिखा के इसको मैं खत्म करता हूँ। तो इस बार मेरी कंपनी के 25 साल पूरे हुए हैं। We started with the Tibetan project
फिर कारगिल की लड़ाई और उसके बाद आर्मी के साथ हमेशा जुड़े रहे, सिविल्स के साथ भी जुड़े रहे। यहाँ पे स्नावर स्कूल, टिम्बर ट्रेल, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं ना आपके, ये टाटा का प्रोजेक्ट ले लो, DLF का प्रोजेक्ट ले लो, ये सब बंद हो रहे थे, ये जा रहे थे यहाँ से क्योंकि इनको कोई पानी देने वाला नहीं था। तो ये सारे मेरे पास आते थे कंसल्टेंसी के लिए, और सारे हमने ये प्रोजेक्ट किए कि हमारे लिए बच्चों का खेल है ये कोई भी। अब मैं पूरा कसौली का पानी दे दो मेरे को, कि 26 करोड़ रुपया बोल रहे हैं, अगर हम 12 करोड़ में मैं कर दूंगा आपको। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आराम से आ जाती हैं। फिर मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि वो फिर टैक्सिंग इतना ज़्यादा होता है ना, जो करा है तुमने अब उसको एंजॉय करो। तो थोड़ा सा ये हो गया था, पर फिर इस बार जब मैं करने चाहा तो मेरे को इन्होंने आर्मी वालों ने फिर बुलाया। पहले 2022 में बुलाया, 20 में बुलाया था, जब इनको गलवान में शिफ्ट करनी थी। गलवान की थोड़ी सी कहानी सुना के मैं एंड करूँगा। तो गलवान एक जगह है, आपने सुना होगा, जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उससे पहले किसी को गलवान भी नहीं पता था। मैं भी 2013 में गया था, मेरे को यहाँ पे आर्मी लेके, तो हमने रेकी की थी और 120 किलोमीटर पे हमने पानी निकाला भी था। अब वो 120 किलोमीटर क्या है, रेकी क्या है, तो वो एक दौलत बेग उल्टी जगह है, जब आप पढ़ोगे डीसी जो कहते हैं उसको। जब थोड़ा सा कहानी इंटरेस्टिंग ये इसलिए रहती है कि आपने बाबर का नाम सुना है? तो जब ये जो ट्रैक था, इसको ओल्ड सिल्क रूट बोलते थे। ये शुरू होता है वहाँ पे मंगोलिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारा, इसको सेंट्रल एशिया बोल देते थे। और यहाँ से ये आता है तो एक जगह आती है जब ये हिंदू कुश को क्रॉस करते हैं, उसका नाम है, जब ये इस साइड को आते हैं हिंदू कुश क्रॉस करके, जैसे सपोज कर लो ये यहाँ पे सेंट्रल एशियन रीजन है, ये एक बात है, इसको हिंदू कुश को क्रॉस किया तो यहाँ पे क्या आ गया, डीबीओ, उसको डीबीओ बोलते हैं। तो दौलत बेग उल्टी की एवरेज हाइट जो है वो 20,000 फीट अबव द मीन सी लेवल। ऑक्सीजन यहाँ पे बिल्कुल नहीं। अगर आप ज़्यादा ही फिट नहीं हो यहाँ पे तो आप सांस की प्रॉब्लम आ जाएगी और आप खत्म हो जाओगे यहाँ पे। मतलब वो एकदम डिपोर्ट कर देते हैं, या ऑक्सीजन चाहिए आपको, ये इतना है। जब अगर आपने यहाँ पे काम करना है, और हमारे कई जियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे काम किया हुआ है, पर बहुत कम है, वो बाड़िया के कुछ साइंटिस्ट होंगे या। अब इसमें क्या था कि जब मेरे को बोला तो वहाँ से नॉर्मली क्या होता है, वहाँ से लेके पहुँचने में 15 से 20 दिन लगते हैं इनको, एक क्योंकि एक्लेमेटाइजेशन करते हैं। पहले 11,000 यहाँ से गया लेह में, तो 3-4 दिन ये लेह में रखेंगे 11,000 की हाइट पे, फिर 14,000 की हाइट में, फिर गलवान में लेके जाएंगे आपको। गलवान कुछ नहीं है, एक श्योक वैली है। श्योक समझते हो? यहाँ पे सुना है श्योक रिवर? जैसे एक इंदस रिवर है, इंदस के जो काराकोरम इंदस है, जहाँ पे हम सूचर बोलते हैं, जहाँ पे इंडिया और चाइना का सूचरिंग हुआ, तिब्बत का सूचरिंग हुआ, पर वो है नहीं है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उसमें भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। अब उसमें क्या है कि इसके बाद आ जाता है जहाँ पे इसका इस साइड है, ये लद्दाख बैथलित आ गया, और दूसरी साइड जो है वहाँ पे आपका श्योक रिवर है। श्योक रिवर का नाम है, जैसे सौरो ऑफ चाइना यांसी रिवर को बोल देते हैं, वैसे ही ये श्योक है। श्योक नहीं करते, शोक सभा कर रहे हैं, इसका नाम ही श्योक है। तो आपको क्या है कि जब यहाँ पे जाते हो आप, तो ये बड़ा इराटिक रिवर है, आज यहाँ पे बह रहा है, कल को वहाँ आ जाएगा, कल को इतना आ जाएगा पानी। तो इनका क्या होता था, जब हमारा था तो यहाँ से जो लास्ट विलेज है उसका नाम ही श्योक है। तो ये पैंगोंग के रास्ते में जब थोड़ा सा नीचे को जाओगे, तो उसके बाद क्या था, वहाँ से उसको 0 पॉइंट मान लेते हैं, उसके 120 किलोमीटर आपको श्योक के अलाउंग चलना पड़ता है, उसको 120 किलोमीटर पॉइंट बोलते हैं। उस 120 किलोमीटर पॉइंट पे वो इस साइड है, ये श्योक रिवर बह रही है, और इसके सामने जो ऑपोजिट है उसको बोलते हैं गलवान वैली। वो गलवान वैली क्यों नाम पड़ा उसका, क्योंकि एक एक्सप्लोरर था, वो अंग्रेजों के साथ वहाँ पे गया होगा तिब्बत, और उसने बचाया होगा, उनको रेस्क्यू किया होगा, उसके ऑनर में उन्होंने उसका नाम, वैली का नाम, और उस वैली से निकाल के उनको लेके आया, उसके नाम पे उन्होंने गलवान रख दिया। तो जब हम 2013 में रेकी करने गए थे, वहाँ पे पानी की रेकी करने गए थे, एक जगह है वहाँ पे, उससे आगे जाके कोई 250 किलोमीटर्स पे है, उसको बोलते हैं चुमताश। उसके बाद ये डीबीओ आया, ये 250 किलोमीटर तो ये डीबीओ आ जाएगा। अब इसमें क्या था, कोई हैबिटेशन नहीं है। जब आप जा रहे हो तो जीप बीच में जा रही है आपकी, या गाड़ी जा रही है, तो इस साइड भी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, इस साइड भी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। वो हड्डियाँ जब मैंने लेके आया तो वो दिखाया, तो कैमल्स की थी, डबल हम्ड कैमल्स की, जो फंस गए होंगे वहाँ पे स्नो स्टाउन्स में, या उनको पानी नहीं मिला होगा या कुछ भी नहीं मिला होगा। तो ये कहानी, जब वहाँ पे हम डीबीओ पहुँचे तो मेरे को इन्होंने 4-5 दिन के अंदर अंदर वहाँ पहुँचा दिया।
पानी की कमी थी क्योंकि फौज वहाँ मूव कर रही थी, तो वहाँ पे हमने पहले पानी निकाला हुआ था, तो मेरे को पता था, पर ये नहीं पता था कि 120 किलोमीटर गलवान, तो उसको थोड़ा ठीक भी किया। अब गए वहाँ पे गए, तो वहाँ पे जब डीबीओ में गए तो बड़ी प्रॉब्लम थी। अब वहाँ पे क्या था कि आर्मी की तो मूवमेंट हो रही है, पहले थोड़े थोड़े बंदे रहते थे वहाँ पे, तो पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती थी वहाँ से। अब जब था ये कम से कम एक पूरी आर्मी ने मूव करना है और सारी परमानेंट स्टेशन चाहिए, और सर्दियाँ आगे आने वाली थी, ये अक्टूबर की बात है, नवंबर दिसंबर में सर्दियाँ हैं, तो वहाँ पे सारा फ्री हो जाना है सब कुछ। अब कोशिश की हमने, तो गैप्सन जगह है वहाँ पे पानी निकला है, और डीबीओ में फिर भी पानी नहीं निकला। और मेरे को क्या हुआ कि अब वहाँ पे इतनी ज़्यादा हालत खस्ता हो गई थी चलते चलते, और वहाँ पे रेस्ट नहीं था। फिर उन्होंने नीचे किया, ऊपर किया, पर वो डिडंट वर्क आउट। फिर ऑक्सीजन लगा एंड आई हैड टू कम बैक। 2020 की ये बात हो गई, और उसके बाद डीबीओ में पानी नहीं निकला, हमने गैप्सन में निकाल दिया, बट दैट बिकेम द सोर्स फॉर द एंटायर आर्मी इंडिया। अब यहाँ पे आ गए, और ये गलवान में पहले पानी निकला हुआ था, तो इतनी इशू नहीं थी। अब क्या है कि थ्रस्ट बहुत ज़्यादा चढ़ गया, अब वहाँ पे पूरा एक ब्रिगेड बन गई है गलवान में, पहले कुछ नहीं होता था वहाँ पे। अब क्या है, पानी उनको चाहिए, तो अब हमारी एनिवर्सरी थी, और लकी थी, देखो किस्मत थी, वी गॉट दिस प्रोजेक्ट अगेन, नोबडी वाज रेडी टू गो कि कौन निकालेगा, सर्दी में कौन जाएगा। तो बस वी हैड हैपेंड कि वी जस्ट कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इन गलवान। तो ये देखो, ये वही वाला बैनर है, और यहाँ से अभी इसमें क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन दिस इज प्रोजेक्ट व्हिच वी गॉट। मतलब ऐसे हम इसको बड़ा आसान ले लेते हैं, बट आई थिंक दिस इज रिमार्केबल फीट फॉर द पीपल, फॉर सोल्जर्स लिविंग इन दोज हार्श कंडीशंस। और यहाँ पे उनको पानी मिल गया, तो मतलब ज़िंदगी मिल गया, बर्फ़ नहीं पिघलानी, कोई कुछ नहीं जाना, कोई बाहर नहीं जाना। पर फिर भी बहुत मुश्किल है हमारे फौजियों की ज़िंदगी, बहुत ऐसे लगता है। अब मैं वहाँ से जब आया तो मतलब तब तो सनी डे था ये हमारा, लेकिन उसके बाद तो अब मैंने बात की उनसे, तो बर्फ़ पड़ चुकी है, मूवमेंट खत्म है, ठंड इतनी हो रही है, बाहर नहीं निकल सकते। मतलब वहाँ पे ये भी था, मेरे को पता नहीं था, जब जैसे मतलब मैंने पहले वो दिया था एक प्रीफैब स्ट्रक्चर था, तो वहाँ पे रुक रहा हूँ। अब रात को बाथरूम आ जाएगा, तो तुम क्या दरवाज़ा खोल के जाओगे, तुम नहीं जाना चाहोगे, जैसे हम मुस्लिम कर, सॉरी। अब यहाँ पे तो उन्होंने बोला ये नहीं क्यों, अब मेरी तबीयत खराब हुई, फिर ये नहीं खोलना, उस साइड से करना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट हवा इस डायरेक्शन को आती है। तो मतलब इतनी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। तो आई होप यू एंजॉयड इट। जियोलॉजी से प्यार करो, अपना निच देखो, जियोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं तुम्हारे को अपना तार मिल जाएंगे, उसको जोड़ के रखो, समझो उसको अच्छी तरह से, 2-4 साल मेहनत करो। इसने भी आशु ऐसे नहीं बन गए, इसने भी बहुत मेहनत की उस टाइम, मतलब एमएससी के बाद कोई स्कॉलरशिप नहीं, पटनायक के पास कोई स्कॉलरशिप नहीं थी, हम भी ऐसे ही चले हैं। जियोलॉजी से प्यार था, पत्थरों से प्यार था, तो मतलब किसी ना किसी रूप में उसके साथ आप रखो, तो उसमें क्या होता है, फिर आपको धीरे धीरे सब साथ मिल जाता है, और फिर बाद में ज़िंदगी अच्छी मिल जाए, एंड में तो सब कुछ ठीक होता है। चलो, थैंक यू।